टीवी और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Pradeep ji, the Prime Minister is here today in Mumbai, Yes, sir. and he's going to be inaugurating, or he has already inaugurated the 141st session of the meeting of the um, International Olympic Committee, which is fantastic. That shows the kind of commitment that the Prime Minister has for sports. India is doing very well in sports indeed, and at the moment it looks as though in the India-Pakistan match, it looks as though India is going to Cruise. kind of, walk through Roller coaster. the final, unless something really Drastic. untoward happens, and we lose about 5-7 wickets, in one over or something. Like that. No, what you said was right. If Pakistan from around 140 for 2 can become 199. 155 for 2. Yes, they were all out for 191. Yes. If you don't play carefully. So one never knows. At the moment, Rohit Sharma and Shreyas Iyer playing very, very well indeed. But the fact is, as far as Mr. Modi is concerned, yesterday the first batch of Indians trapped in the war in Gaza, in Israel, have been brought back. I think by day after tomorrow, the second batch will come in. And I don't think Mr. Modi is going to leave anybody trapped in Israel in the country. That He has never done it, sir. 2014 से लेके आज तक any major conflict has happened around the world, Yes. and our people have been stranded. That's right. He has worked his way out. As Sushma Swaraj has praised him that even he stopped the Saudi-Yemen war. He asked the king of Saudi personally, and he obliged saying that I can't stop the war for 4 days, but बीच में gap में रोकता रहूँगा bombings. आप वहाँ से 2 घंटे में खाली कर देना for 4 days. And we did. We brought in all our people in 2 planes. One was a C-17 Globemaster, the other was a C-130 Hercules, and that was fantastic. Not one single Indian was left behind. Exactly the same thing is going to happen as far as Israel is concerned, which is absolutely fantastic. And tomorrow, by the way, is the greatest time of the year as far as I am concerned. मेरे लिए सबसे ज़बरदस्त जो टाइम होता है साल का, वो कल से शुरू होगा, वो है नवरात्रि. You and the Prime Minister himself, he believes a lot. The Prime Minister is a great man. The fast starts tomorrow, and of course, as you know, we all fast in our own way. I fast, of course, with 1 apple a day, and the rest of the day is water, of course, and that's fantastic. I mean, I feel great. I feel really and truly fantastic all throughout the time. Pradeep ji, you don't even feel hungry at the time when you're fasting. I've during seen Navratri. Years and years together you've been doing it. It is absolutely lovely. The loveliest time of the year where I am concerned. दुर्गा माँ की जो पूजा होती है और नवरात्रि में जो डांडिया होता है, which is fantastic by the way. And here I must say that जहाँ तक डांडिया का प्रश्न है प्रदीप जी, हम लोगों ने नई मुंबई में, इन मुंबई में सबसे पहले हमने डांडिया की लाइव टेलीकास्ट की शुरुआत की, और उसके बाद now of course it's become really and truly big. Everybody joined in later. उस वक्त लोग पूछा करते थे, भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं? We started with Falguni Pathak, and it was really and truly lovely. At the moment with us, we have another really and truly famous and amazing Dandiya singer, a man who is considered a star in his own right, Mr. Nilesh Thakkar, right now with us. Nilesh Thakkar ji, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार. नमस्कार Nilesh Thakkar ji, कैसे हैं? बस फाइन. आप कैसे हो सर? बहुत जबरदस्त. माता रानी की कृपा है. माता रानी की कृपा है और हमेशा की कृपा रहनी चाहिए. नीलेश ठक्कर साहब, इस बार जरा आप बताएं कहाँ पर गा रहे हैं, किस जगह परफॉर्म कर रहे हैं इस बार डांडिया में, जरा बताएं. मैं बोरीवली में नवरंग नवरात्रि, बोरीवली में ओपेल कन्वेंशन सेंटर है जी, जो एक एसी साउंड प्रूफ डोम है और बहुत ही अच्छी जगह है, जो क्लोज नवरात्रि है. बोरीवली की एकमात्र क्लोज नवरात्रि एसी डोम नवरात्रि है, वहाँ पे परफॉर्म. सो दोनों में फर्क क्या होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है बड़े ओपन ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं. ओपन ग्राउंड में और क्लोज नवरात्रि में क्या फर्क होता है, ये जरा बताएं. एक्चुअली ये ग्राउंड ही है, लेकिन ये डोम है पूरा.
बहुत बड़ा डोम है जिसमें अराउंड 4000 पीपल की कैपेसिटी है। और फ़र्क ये है कि पूरा एसी है और पूरा क्लोज है, साउंड प्रूफ है। तो एक बड़ा फ़ायदा ये है कि एसी है तो लोग एग्जॉस्ट नहीं होते, लंबे टाइम तक खेल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि थोड़ा लंबे देर तक ये डांडिया चलता है, रात को लेट तक। तो ये दोनों बहुत बड़े फ़ायदे हैं because there's no noise pollution, which is या fantastic. देयर इज़ नो नॉइज़ पोल्यूशन या। विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो नीलेश जी, ये अपने बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि कब से आप ये कर रहे हैं, कब से आप ये गाना गा रहे हैं, कब से आप डांडिया के वक्त नवरात्र में गाना गा रहे हैं, जरा उसके बारे में जरा बताएं प्लीज। दिस इज़ माय 34th ईयर ऑफ नवरात्रि। क्या बात है साहब, वंडरफुल। यू लुक अबाउट 23, तो 34th ईयर कैसे हो गया? मतलब ये क्या मतलब हुआ यार? चलिए, लेकिन फिर भी बताइए प्लीज, गो अहेड। दिस इज़ माय 34th ईयर ऑफ नवरात्रि। और मैंने 17 साल डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक के साथ एज अ को सिंगर काम किया है। जी। और लास्ट अराउंड 15 ईयर्स से ये मैं अपने खुद के बैंड के साथ नवरात्रि बोरियल में परफॉर्म कर रहा हूँ। फैंटास्टिक। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, 1998-99 में सबसे पहला लाइव टेलीकास्ट जो फाल्गुनी पाठक जी का हुआ था, वो हम लोगों ने करवाया था व्हेन वी वर रनिंग इन मुंबई। ओके, या आई नो जी आई नो जी। तो अभी फाल्गुनी जी हैं कहाँ पर? फाल्गुनी भी बोरियल में ही परफॉर्म कर रही है। क्या बात है, Okay, वंडरफुल वंडरफुल। So both are competing with each other. ये हाँ, No, तो फाल्गुनी के बारे में आपकी क्या राय है? किसी का नहीं हो सकता है। तो फाल्गुनी के बारे में आपकी क्या राय है, वो जरा बताएं। हम सब जितने भी नवरात्रि सिंगर है सबकी मेंटोर है वो। क्या बात है साहब, वंडरफुल वंडरफुल। मेरी तो खास करके है क्योंकि मैंने 17 साल उनके साथ काम करके बहुत सारा कुछ सीखा है उनसे। जी। और मैक्सिमम सिंगर्स मेरे ख्याल से उनको फॉलो करते हैं। जी। एंड इट्स अ प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद फाल्गुनी। Oh, she's brilliant. She's So absolutely in brilliant. Borivali you're not competing with her. You are, compete नहीं कर रहे हो आप एक दूसरे से। कंपटीशन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स बाजू बाजू में है तो। लेकिन लोग अभी ऐसा करते कि 5 दिन हमारे उधर आते, 5 दिन उसके साथ आते। जो उसके डायट फैन है वो उसके उधर ही जाते हैं, जो मेरे उधर डायटली खेलने को पसंद करते हैं, मेरे डायट फैन है वो मेरे उधर ही आते हैं। ऐसा है। जबरदस्त। लेकिन नीलेश ठक्कर जी, क्या ये बताएं कि गानों में कोई फर्क आया है? मतलब इतने साल से आप डांडिया में परफॉर्म कर रहे हैं, नवरात्रि में परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या गानों में, गानों की क्वालिटी में, भाषा में कोई फर्क आया है क्या? मतलब थोड़ा म्यूजिक वगैरह में तो फर्क आया, वो तो देखा है हमने, लेकिन क्या गानों में फर्क आया? स्टाइल ऑफ म्यूजिक में थोड़ा चेंज हुआ है। यंगस्टर्स जो है वो थोड़ा मॉडर्न साउंड प्रिफर करते हैं। हमारे उधर की नवरात्रि की एक स्पेशलिटी है कि वी डोंट गो ऑन एनी बॉलीवुड नंबर्स और समथिंग। वी स्पेशली स्टक ऑन टू द ट्रेडिशनल नंबर्स, जो ट्रेडिशनल गरबे है, जो राधा कृष्ण के रास है, माता जी के गरबा है, उस पर हम लोग वी ट्राई टू मैक्सिमम, हम नवरात्रि वाले ये प्रिफर करते हैं कि उस पर स्टक रहे ऐसा। जी। और आप जो शुरू करते हैं, नेचुरली शुरू तो आप माता जी की आरती के साथ ही शुरू करते होंगे या जी, लेकिन आगे जाकर के जो आपके सबसे पॉपुलर नंबर्स हैं, सबसे पॉपुलर जो गाने हैं, उसके बाद क्या होता है? जो पहले 5 या 6 गाने आप गाते हैं, उसमें कौन से गाने गाते हैं आप जरा बताएं। माता जी के गरबे से ही शुरू करते हैं, जो ट्रेडिशनल गरबे रहते हैं माता जी के, जी, उससे ही शुरू करते हैं। कोई नमूना सुनाएंगे सर हमको प्लीज, हमको और हमारे दर्शकों को। जैसे इस वक्त हमारे साथ है नीलेश ठक्कर साहब। आज की तारीख में उनकी नवरात्रि हो रही है बोरीवली में, ऑन दैट कवर्ड डोम। इट्स कंप्लीटली एसी, इट्स कंप्लीटली एयर कंडीशन, एंड देयर इज अ स्पेस फॉर अबाउट 4000 or 5000 couples. So it's up to you. You know where to go. जी, नीलेश जी बताएं। जैसे कि माता जी का गरबा रहता है, कोई भी एक समझो माता जी के गरबे से हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे एक बहुत पुराना गरबा है, सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे, रूपला गरबो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। ऐसे एक ट्रेडिशनल गरबे से कोई भी 4-5 रहते हैं, उनसे हम लोग शुरू करते हैं। जबरदस्त। अब तो ये ये- तो ये एक हर साल- मिनट प्रदीप जी, ये तो मुखड़ा हो गया, अब इसका अंतरा भी सुना दो यार। ये तो मुखड़ा सुना दिया, उसके बाद अंतरा भी तो सुनाओ। सखियो संगाथे केवा घूमे छे, फरर फूदड़ी फरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे।
ये अंतराल उसका। जय माता दी, क्या बात है जी। प्रदीप जी आपको बोलिए, ठाकर साहब बोलिए। ये 4-5 गीत गाते हो जो भगवान को प्रेरित है, तो वो हर साल वो सेम फॉलो अप करते नहीं रूटीन? नहीं नहीं नहीं, वो बदलते रहते हम लोग, लेकिन एक जो ट्रेडिशनल है जो बहुत पुराने उनको हम लोग लेते ही रहते हैं, ऐसा आता है। बिकॉज हर व्यक्ति जो आपके ऑडियंस है वो चाहता है यही से आप शुरू करो, यही से शुरू करो, बिकॉज बहुत चाहने वाले हैं आपके, वही गाना कुछ सुनने गाने के रहते लिए। हैं जो हम लोग को रोज लेने पड़ते हैं, जैसे कि मेरा एक गाना है जो बहुत फेमस है, तो वो पीपल डिमांड करते हैं कि वो हम लोग रोज ही गाए, जैसे वो थोड़ा फास्ट बीट में आता है। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं। ये गाना है तो ऑलमोस्ट अरे पब्लिक थोड़ा बोलती थोड़ा है और कि सुनाइए ना, दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग बाय द वे। ये मेरा जब भी नवरात्रि में ही बने नहीं तो वैसे राधा भी श्याम फेवरेट सॉन्ग है। बनूंगा। जरा थोड़ा और सुनाइए ना प्लीज। जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं। ये गाना है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वी ये मुझे याद है, मतलब आपने और फाल्गुनी जी ने ये गाना भी एक बार नहीं न जाने कितनी मर्तबा गाया है। और एक बार वो घाटकोपर में इतनी जबरदस्त नवरात्रि थी, आई थिंक द क्राउड ओवर देयर वाज आई थिंक अबाउट 70-75,000। मुझे याद है वी हैड कवर्ड इट लाइव, हम लोगों ने लाइव कैरी किया था सहारा में। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, रियली वंडरफुल। तो इसके अलावा अब चलो ये तो राधा जी की बात हो गई, तो जहां तक माता के खुद के जो नवरात्रि के जो गाने हैं उसमें से आपके खुद का फेवरेट कौन सा है, वो जरा बताएं। माता जी के जो गरबे के गाने, उसमें हम लोग एक पैटर्न बोलते हैं जिसको डाकला पैटर्न बोलते हैं। जी तो उसमें एक गाना है वो मुझे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और वो गाने से पब्लिक भी एकदम चार्ज अप हो जाती है, वो गाना हम लोग गाते हैं तो। फिर माता जी के दूसरे जो है कुछ जरा सुनाएंगे सर, जैसे जरा सुनाइए, बोल के कुछ नहीं होगा, जरा खेल बताइए। खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ, खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ, ओ जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे माँ, ओ जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे माँ, खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ। ये गाना है जी जो दुरुस्त बात, हर जगह पे, हर जगह पे, हाँ, हर नवरात्रि में यही of चलता course, है of जी। course। ठाकर साहब ये फिल्मों में जब भी डांडिया होता है तो अमिताभ बच्चन और रेखा का वो गाना, वो काल के पंजे से माथा छुड़ाओ, जय मां अष्ट भवानी, बहुत बहुत फेमस है फिल्म लाइन में। तो ये भी कभी गाते हो क्या आप, अमिताभ बच्चन नहीं, रेखा नहीं, वाले? वो तो नहीं, लेकिन वो जो गाना जिस गाने गुजराती गाने से इंस्पायर हुआ है वो गाना हम लोग जरूर गाते हैं। वो गुजराती गाने के 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। जी प्लीज प्लीज। हे रंगलो जाम्यो कालिंदरीने घाट छो गाड़ा तारा, ओरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग भेरू जुवे तारी, हे वाट रंगलो। ये इसी पे से वो गाना इस पे से इंस्पायर हुआ है। Fantastic. जबरदस्त। अच्छा ये बताएं सर, आप अभी वो एयर कंडीशन डोम में गा रहे हैं, जरा दोबारा उसका एड्रेस बताएंगे सर, ताकि हमारे ये है दर्शकों को बोरीवली मालूम हो। लिंक रोड में, नियर फिस्को रेस्टोरेंट, ओपेल कन्वेंशन सेंटर, नवरंग नवरात्रि। ओपेल कन्वेंशन सेंटर, नवरंग नवरात्रि, याद रख लीजिएगा। यू वांट गो देयर एंड आई मीन सो देयर must be tickets, there must be passes, something or the other. Yeah. It's available on the net. Is that available on the Yeah, net? it's on Paytm Insider. Paytm Insider. All right, you can get it on Paytm Insider. Navrang Navratri, it starts tomorrow. Please be there. Tomorrow is the first day It of starts from Navratri. 7:30 onwards. हम लोग पहले माता जी की आरती करेंगे और फिर गरबा शुरू करेंगे। Fantastic, absolutely And fantastic. do you end by 10 or 12 बजे तक चलते रहते हैं? Gee, that's what I was about to ask. So Okay. you go on till about 12 o'clock? लेट नाइट तक चलता है थोड़ा, लेकिन टाइम कभी फिक्स नहीं रहता है। जैसे अभी लो एंड ऑर्डर से जो भी जाता है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी दुरुस्त बात है, लेकिन आपका क्या है, यू हैव एन एडवांटेज, एयर कंडीशन है, क्लोज्ड है, ऑब्वियसली देयर इज नो साउंड पोल्यूशन, बाहर कुछ साउंड नहीं जा रही है, तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड हैव एन ऑब्जेक्शन। यही आपसे पूछना था। होनी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल वी हैव टू फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर। या अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस बार वादा तो किया था कि इस बार जो डांडिया है
वो लंबा चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो वो वक्त देखा है कि डांडिया सुबह तक खेला करते थे यार, मैंने खुद ने गाया सुबह सूर्य सुबह होने 7 तक खेला करते थे। मैंने खुद ने सुबह 7 बजे तक गाया है। क्या बात है, अरे कंटिन्यू 7 बजे तक। व्हेन वाज दैट, व्हेन वाज दैट, जरा बताएं कब That कब was की the बात? time. It was like Must be 95, 96. 30 years or something. Must be 97 or 96, 97, around that time. Yeah. Yeah, because the laws came in, I still remember, around 1999. 99 के बाद जो है वो हो गया 10 बजे का टाइम हो गया वगैरह वगैरह। That was terrible यार। अभी 10 बजे, अरे 10 बजे तो वार्म अप होते हैं लोग यार, 10 बजे तो जाकर के गरबा का टाइम ही सुबह शाम रात को 10 बजे से चालू होता है ऐसा। जी दुरुस्त बात है। तो अब आपका जो डांडिया है, आपकी जो नवरात्रि है जहां पर आप गाते हैं, तो लोग ज्यादातर भक्ति गीत प्रेफर करते हैं कि जो लोकल गुजराती पारंपरिक गीत वो प्रेफर करते हैं? प्लीज जो प्रॉपरली जो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक गरबा है, जी। फिर राधा कृष्ण के जो रास के गाने हैं, फिर शंकर भगवान के कुछ गाने हैं जो हम लोग गाते अरे हैं। शाबाश, ये We शंकर sing, भगवान का कौन सा गाना है यार? ये तो Sorry. सुनाओ जरा प्लीज, आई वांट टू लिसन, जरा बताएं प्लीज। या हो जरा डमरू बजाओ शिव शंकर मैं पूजा करने आया हूँ, जरा डमरू बजाओ शिव शंकर मैं पूजा करने आया हूँ। ये गाना हम लोग गाते हैं। क्या बात है साहब, वंडरफुल। ये कभी फर्स्ट टाइम आई हर्ड ऑफ दिस। कभी क्राउड को एकदम पैशनेट करने के लिए कोई बीच में आप लोग गाता होगा एक जबरदस्त गाना, वो पूरे क्राउड हिल जाता होगा अपलिफ्ट करने के लिए। ए अमो काका बापा ना पोयरा रे कौंडलियो खिलाड़ू, अमो काका बापा ना पोयरा रे कौंडलियो खिलाड़ू, कौंडलियो खिलाड़ू, कौंडलियो खिलाड़ू। ये गाना हम लोग बीच में गाते हैं। क्या बात है साहब, वंडरफुल। लेकिन एक चीज है नीलेश शक्कर साहब, जब आप अलग कब हुए फाल्गुनी जी से? फाल्गुनी जी के साथ आप बैकअप सिंगर थे, उनके साथ में गाते थे, बैकअप सिंगर ही नहीं थे, उनके साथ में भी गाते थे, और जब वो अंदर चली जाती थी, थक जाती थी, आप क्राउड को संभालते थे अपने गानों से। तो जब आपने अपना शुरू कर दिया तो फाल्गुनी जी ने आपको कांटेक्ट नहीं किया कि ये क्या कर रहा है, मुझको छोड़ के कहाँ जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी, लेकिन स्टिल वी आर ऑन गुड टर्म्स। ऐसा नहीं है, हम लोग अच्छे टर्म्स पे है और कभी कभी बातें भी होती है। हर एक आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो जी। मैंने एक स्टेप लिया आगे बढ़ने का, बस और कुछ नहीं। फैंटास्टिक। तो बगल बगल में तो आप लोगों को क्या बोलते हैं, थोड़ा दिन हमारे पास आओ, थोड़ा फाल्गुनी जी के पास जाओ, उस ढंग से एडवर्टाइज करते हैं कि पूरे हर दिन यहीं पर आ जाए? सर फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, लोग अपने आप ही 5-5 दिन डिवाइड हो जाते हैं। और जो मैंने पहले ही कहा कि जो उनके डाइट फैन है वो 10 दिन उनके उधर ही जाते हैं, और जो मेरे डाइट फैन है वो 10 दिन मेरे उधर ही आते हैं। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन आपने And मैंने जैसे बोला कि नवरंग नवरात्रि बोरीवली की एक बहुत ही जो एक क्लोज नवरात्रि है, बहुत ही वन एंड ओनली वन क्लोज और प्रीमियम नवरात्रि है, तो वो हिसाब से लोग यहाँ पे आना प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ का क्राउड भी वो लेवल का रहता है, क्योंकि एसी डोम है, अच्छे घर के लोग, वेरी हाई ग्रेडेड पीपल यहाँ पे आते हैं, तो क्राउड भी वैसा ही रहता है यहाँ पे। लेकिन ये बताएं, सॉरी आपको वापस लेके जा रहा हूँ, कि आपने जो शुरुआत करी वो कब करी? कितने छोटे थे आप, कितने बड़े थे आप, क्या उम्र आपकी क्या थी? आपने 34 साल स्टार्टेड इन 1990। 1990, वाओ। Where did you perform first, sir? सबसे पहली परफॉर्मेंस आपकी कहाँ की, याद है आपको? First I performed in Malad in a building, त्रिमूर्ति टावर, मलाड लिबर्टी गार्डन में बिल्डिंग है, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। बिल्डिंग नवरात्रि थी, उसमें परफॉर्म किया था। सेकंड ईयर मैंने परफॉर्म किया था कांदीवली में, मजीठिया नगर में जी। तभी उस टाइम में वो मजीठिया नगर की नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि गिनी जाती थी जी। सेकंड ईयर आई परफॉर्म देयर, एंड थर्ड ईयर से फिर आई जॉइन फाल्गुनी पांडे। जबरदस्त। तो फाल्गुनी के साथ मुलाकात कब हुई? जो पहली मुलाकात आपकी हुई फाल्गुनी के साथ, वो जरा बताएं। फाल्गुनी के साथ पहली मुलाकात मेरी, फाल्गुनी तभी बीटर्स करके एक ग्रुप में गाती थी, वो बीटर्स और फाल्गुनी वेर टुगेदर। याद है, उनके शो में मैं ऑडिशन के लिए गया था, और वहाँ पे ही मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। तो क्या कहा फाल्गुनी ने आपको, और आपने फाल्गुनी को क्या कहा? बस उन्होंने कहा कि आप चालू राउंड में उन्होंने बोला मुझे आप 1-2 गाने गाइए, मैंने गाए और फिर उनको पसंद आया, तो दे ऑल एग्रीड, एंड फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। जबरदस्त। यूजुअली सुपरस्टार्स में क्या होता है, जैसे साउथ में 2 सुपरस्टार है, कमल हसन, रजनीकांत, तो पहले दोनों साथ में करते थे पिक्चर,
फिर बहुत दोनों में अंडरस्टैंडिंग होते थे कि भाई कमल हसन आप ऐसे पिक्चर कर लो, कमल हसन रजनीकांत को, तो दोनों तो अभी भी तालमेल होता रहते हैं हर साल आपका कि आप इधर मैं उधर, ऐसे गाना मैं गाऊंगा, ऐसे गाना आप गाओगे, ऐसे ऑडियंस को आप ले लो, ऐसे ऑडियंस को हम लेंगे। नहीं उतना तो इतना नहीं होता है कम्युनिकेशन, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हम लोग एक दूसरे को विश करते हैं नवरात्रि के पहले, नवरात्रि के बाद भी हम लोग बात करते हैं कि अरे हाँ मैंने तेरा ये देखा था टीवी पे, मैं भी बोलता हाँ मैंने भी ये देखा था आपका टीवी पे, वैसा बात होता है। जबरदस्त जबरदस्त। तो फिल्म लाइन में आप कभी गाने का इच्छुक थे या फिर टोटली आप डिवोटेड थे स्पिरिचुअल और जो स्पिरिचुअल चीज में, इसमें डेडिकेटेड था पहले से। टोटल स्पिरिचुअलिटी में? या नवरात्रि एंड ऑल। ओके ओके ओके, बिकॉज फिर आप अलग ही आपका स्पिरिचुअल मींस अलग फिल्म से हटकर बहुत बड़ा फील्ड है स्पिरिचुअल, यानी बहुत बड़ा फील्ड है। बिग बिग फील्ड। सो वेयर एल्स हैव यू परफॉर्म सर? नीलेश ठक्कर साहब जरा बताएं प्लीज। मैंने और, all over और, world और perform किया है, कहाँ पे परफॉर्म किया है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, जरा बताएं। हिंदुस्तान में भी सब, हिंदुस्तान के बाहर सब जगह पे, यानी यूएसए, यूके, दुबई, मस्कत, बहरीन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग। अफ्रीका में कहाँ पर सर? किधर? कीनिया में, युगांडा नाइजीरिया में? युगांडा कहाँ? युगांडा में भी किया है, फिर अपना केन्या में भी किया है, जी वंडरफुल, नायरोबी में भी किया है, नायरोबी में भी किया है। नायरोबी में भी। There's a huge Yes or Gujarati no? population where Africa is concerned, South So, Africa, so, East so Africa. what do they prefer to listen to? Nilesh Thakkar साहब, for Traditional example in Gujarati. Africa, ट्रेडिशनल गुजराती दे प्रीफर। ट्रेडिशनल गुजराती या और बिल्कुल संगीत और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से गाते हैं, पारंपरिक तरीके से। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं, ढोल के साथ बस। नहीं, अपने जो ड्रम्स वम्स और ढोल उसके साथ ही। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट? जैसे नैरोबी में आपने परफॉर्म किया, नैरोबी में लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट गाना कौन सा था डांडिया का? वो आपको मालूम ही होगा वैसे, वो जरा बताएं सर प्लीज। गुजराती के ट्रेडिशनल जितने भी माता जी के या राधा कृष्ण के, जैसे कि अभी हम लोग जो एंड करते हैं वो राधा कृष्ण की धुन से करते हैं, जैसे वो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, तो ये सब भी चीजें वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। और अमेरिका में, यूएसए में क्या टेस्ट है सर? सेम उनको भी ये सब ट्रेडिशनल जो भी गाने हैं उनको सब पसंद आते हैं बहुत। तो USA में। आपको लगता है कि वहां के जो हिंदुइज्म बहुत कट्टरता से यहाँ से ज्यादा वहां पर प्रीच कर लेते हैं, और यहाँ के भजन जितने हैं वो बहुत दिल से वो लोग लेते हैं, हमने भी सुना है आप। या उनका एक है कि वो लोग पूरे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में आते हैं खेलने के लिए जी। और प्योर ट्रेडिशनल जो गाने हैं उसको प्रिफर करते हैं वो लोग, तो वो लोग ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। और नंगे पैर आते हैं ज्यादातर, या चप्पल उप्पल के साथ, जूतों के साथ नहीं आते। या तो आपको भी नंगे पैर, आपको भी नंगे पैर परफॉर्म करना पड़ता है कि आप? नहीं ऐसा स्टेज पे तो ऐसा कुछ होता नहीं। क्या बात है सर, क्या ये इस क्षेत्र में आने के लिए कोई इंस्पिरेशन था कि अपने आप ही आ गए? बिकॉज क्या है, कुछ लोग मोस्टली जो गायक रहते हैं वो सोचते हैं कि पहले फिल्म लाइन देखो, फिल्म में ट्राई कर लो। क्या आपको कोई प्रेरणा था, इंस्पिरेशन था कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअल इस फील्ड में आना है? बिकॉज बहुत लोग को कोई रोल मॉडल होता है जिसको देख के वो बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू बी लाइक दैट, तो आई विल, और अपने आप को उस फील्ड में उसी व्यक्ति के हिसाब से इम्बाइब करते हैं। आपको कोई ऐसा रोल मॉडल था इस सिंगिंग में? सिंगिंग में एक्चुअली मेरा तो सिंगिंग से कोई लेना देना ही नहीं था। अच्छा मुझे तो एक्टर बनना था, सिंगर बन गया। अच्छा। अभी लेकिन भी कॉलेज है? के एनुअल डे में गाया था, वहाँ पे जो ग्रुप आया था ऑर्केस्ट्रा वाले, एक्सीडेंटली कॉलेज में एक फ्रेंड ने मुझे चढ़ा दिया एनुअल डे में गाने के लिए, तो जो ग्रुप आया था उन्होंने बोला आप अच्छा गाते हो, आपको ट्राई करना चाहिए प्रोफेशनली। तो मैंने सोचा नहीं यार मेरा ये सब काम नहीं है गाना वाना, ये तो ऐसे ही आ गया मैं। लेकिन फिर भी वो अपना कार्ड दे के गए थे मेरे को कि आपको ऐसा लगे तो आप हमें कांटेक्ट करना। फिर मैंने भी सोचा चलो कांटेक्ट करता हूँ, अगर होगा कुछ तो देखेंगे। फिर कांटेक्ट किया, फिर उनके ग्रुप में ज्वाइन हुआ और एक्सीडेंटली फिर भगवान की दया से सब आगे बढ़ता गया। तो अभी भी एक्टिंग एम्बिशन है सर क्या नीलेश ठक्कर साहब? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो अभी चला गया। अभी नहीं है सर, चलते अभी चलते गाना ही पैशन हो गया। और एक्टिंग में कौन रोल मॉडल था आपका? यानी आप एक्टिंग में आना चाहते थे, जैसे हमारे राजेश खन्ना है, अमिताभ बच्चन है, तो सेम अमिताभ बच्चन अमिताभ को देख के आप All time favorite। थोड़ा स्टाइल आपका लग रहा है, वो बाल बाल जिस प्रकार से है। नहीं। नहीं, लेकिन ये बताएं चलते चलते सर, चलते चलते माता जी की आरती अगर थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए तो प्लीज। जय आद्या शक्ति
माँ जय आद्या शक्ती अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या पडवे पंडित माँ ओम जय माँ जगदम्बे बोल श्री अम्बे मात की जय 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 भवानी, जय माता दी। नीलेश ठक्कर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, Thank नवरात्रि you, की sir. बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank जय you, sir. भवानी, जय माता दी। थैंक यू सर जय और भवानी आप गाते, आप फास्ट रखते हैं सर? आप नवरात्रि का फास्ट रखते हैं कि नहीं रखते? फास्ट तो नहीं करता मैं जी। लेकिन भक्ति करता हूँ बस लेकिन नाम स्मरण फास्ट करके गाना जरा मुश्किल होता है, सीधी सादी बात है। बट थैंक यू वेरी मच, ए ग्रेट प्लेजर Thank you. टॉकिंग टू यू, एंड वी Thank विल you, ट्राई, sir. वी शैल ट्राई एंड कम टू सी योर नवरात्रि। प्लीज डू सर सर आइएगा तो मुझे बताइए नहीं सर, किसी को बिना बताए आएंगे सर, दूर अच्छा, दूर thank देखना चाहेंगे कि आप कैसा गाते हैं, क्योंकि श्योर we श्योर we सर will do that. But thank you very Sure. much again, और जय माता दी, जय जय माता माता दी। Thank you so दी, much. जय जय माता दी, हर हर महादेव, Thank जय you. माता दी। जय माता Thank you very much, thank you. What a beautiful time is here, Pradeep ji. This is really a lovely time, यस बिल्कुल सर। absolutely fantastic. एनर्जी, शक्ति, जी, The अगले whole- अगले 9 दिन के लिए अम्बे माँ का यहाँ पे वास होगा धरती के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी दानव हैं, जितने भी राक्षस हैं, उन सब का नाश होगा। भारत में और पूरे विश्व में शांति होगी। एक बार फिर सुख की, खुशी की पुनः स्थापना होगी। हम तो सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं। the whole universe is bubbling with energy, यस, एंड पॉजिटिव एनर्जी। positive energy. Right, and at the moment with us from the Congress Party, we have our old friend, Mr. Nasir Hussain. Nasir Hussain साहब, नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार नासिर हुसैन साहब, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू सर सर अभी अभी एक सर्वे आया है, पता नहीं आपको, आपने देखा कि नहीं, सर्वेक्षण एक आया है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जिस प्रकार आज की तारीख में, और तो और छोड़िए, बाकी सब चीज़ तो छोड़िए, जिस तरीके से सोनिया जी भी आज की तारीख में कांग्रेस की कैंपेन में उतर गई हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द कांग्रेस इन द 5 स्टेट्स विच आर गोइंग फॉर इलेक्शन। 5 स्टेट में जहाँ पर इलेक्शन हो रही हैं वहाँ पर कांग्रेस को रोकना ज़रा मुश्किल होगा, ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को। यहाँ तक के जो चैनल्स आपके खिलाफ भी हैं वो भी ऐसा बोल रहे हैं। नासिर साहब, ये क्या हो गया? ये चमत्कार आप लोगों ने कैसे कर दिया? ये ज़रा बताएं, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक सर्वे में तो हमेशा ही बीजेपी जीतती है सर। बाकी रिजल्ट में क्या है, लेकिन सर्वे में भी जीतती है बीजेपी। इस बार तो सर्वे में आप ही जीत रहे हैं, ये क्या बात है? बिल्कुल नमस्कार। हम यूं ही जीत रहे हैं क्योंकि ये देश जिस हालात से गुजर रहा है, नफरतें चारों तरफ है, बेरोजगारी तमाम लोगों के बीच में है, माँ बहनों की इज्जत हिफाजत में नहीं है, समाज टुकड़ों टुकड़ों में है, इसलिए लोग हम जीत रहे हैं। अरे गांधी फैमिली की बात, तो गांधी फैमिली तो इस देश के लिए आज से नहीं, पंडित नेहरू से लेके उनसे पहले भी देखे, तो सबने इस देश के लिए संघर्ष किया है। तो आज ये 3 गांधी संघर्ष कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जनता आज उनके साथ है, आवाम उनके साथ है। चाहे वो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की जनता हो, राजस्थान की जनता हो, मिजोरम की जनता हो, तेलंगाना की आवाम हो, तमाम तरफ छत्तीसगढ़ हो, जहां भी जा रहे एक सैलाब है, लोग जन सैलाब चल पड़ रहा है। क्या है, एक उम्मीद दिख रही है इनमें, एक उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद की है कि आने वाला हमारा भविष्य, हमारा मुस्तकबिल, हमारे आने वालों बच्चों का कल एक सेफ सर हाथों में आने वाला है, एक ऐसे सरकार हाथ में आने वाली है जो उनको जॉब दे सकती है, किसानों के हालात बदल सकती है, जो सिर्फ नौकरियां दे सकती है, जो सिर्फ बातें नहीं करती है, जो काम करके दिखाती है। क्योंकि हमने जो हिमाचल में वादा किया, कर्नाटका में वादा किया, लोगों ने देखा कि हम अपने वादों पे कितना मुकम्मल होते, कितना पूरा करते हैं। जनता, आज की जो जनता है वो बहुत जागरूक है, उन्हें पूरी इल्म है कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं। आज हमारी तरफ उनके पास 2 ऑप्शन था, एक ऑप्शन था इंडिया अलायंस, दूसरी थी भारतीय जनता पार्टी की अलायंस एनडीए। तो उनके पास ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 में उन्हें दिख रहा है कि इंडिया अलायंस उनसे कहीं बेहतर है,
क्योंकि हमने झूठे वादे कभी नहीं किए। हमने नहीं कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को जॉब देंगे, हर खातों में हम इतना 15 लाख के आसपास का अमाउंट भेजेंगे। हमने नहीं कहा था 100 दिन में काला धन आएगा। हमने नहीं कहा था, झूठे सपने नहीं दिखाए। हम सच के सपने दिखाते हैं और सच को हम पूरा करते हैं, तभी लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। आज देखिए सोनिया जी के बातों, आप एक सोनिया जी की बात आई है तो आप एक बात और मैं बोलता चलता हूँ कि सोनिया गांधी वो है जहां आज के तारीख में एक मामूली सा नगर सेवक का कोई पद लेने को तैयार नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं होता है। नगर सेवक की बात है, पार्टी में एक छोटा सा औहदा मिल जाए उसको लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। उनके सामने प्राइम मिनिस्टर जैसा कुर्सी बैठी थी, उससे कुर्बानियां कर दी। उन्होंने कहा वो हमारे लिए नहीं रखता है, हम इस देश हमारे लिए मायने रखता है। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया जो उनको बेहतर लगा। तो जो उस समय त्याग दिया, जो आज इस कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी ना जाने कितने कौमों को लड़ा रही है, उस कुर्सी को इन्होंने त्याग दिया। इसलिए आज सोनिया गांधी पे लोग एतबार और यकीन करते हैं, जानते हैं कि जो मैडम बोल रही है तो बेहतर ही होगा, जो बोल रही है वो सच होगा, क्योंकि उनकी जुबान में, उनके अल्फाज में जो वादा है वो पूरा किया। क्योंकि आज तेलंगाना बन के अगर नक्शे पे दिखता है तो वो सोनिया गांधी की देन है। सारी पार्टी के खिलाफ थी मगर सोनिया गांधी चाहती थी कि बने, तो उन्होंने तेलंगाना बन के दिखा दिया। हमने झूठा वादा नहीं किया था कि हम तेलंगाना नहीं बनाएंगे, हमने वादा किया तो हमने तेलंगाना बनाया। हमने नहीं कहा था उनको रिजर्वेशन देंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे। तो आज महाराष्ट्र में चल रहा है, जालना में देख लीजिए कितना बड़ा आंदोलन आज खड़ा हो गया है। लाखों 21 लाख 20 लाख की आबादी लोग आज रोड पे आ गए। तो ये क्या है? ये इनकी झूठे वादे ही तो है सर। आप देखिए, इसलिए हम पे जनता यकीन और वही नहीं हुआ है नासिर साहब। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि आपने मराठा आरक्षण आपने वादा किया, लेकिन मराठा आरक्षण के वादे के एवज में सामने जितने भी अलग ओबीसी हैं वो सब खड़े हो गए हैं। जैसे दांगड़ कम्युनिटी खड़ी हो गई है, जो बाकी कुनबी है वो खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों का क्या, सीधी बात है। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू, वेरी फ्रैंकली। ये आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कोई प्रशासकीय गलती हुई है या पूरा स्टडी नहीं करते हैं या क्या हुआ है? मतलब नहीं, शासकीय गलती नहीं है, ये बरबोलापन होता है। एक समाज को एक छोटा वादा करना होता है, एक उनको एक बहका देना होता है, एक पार्टी को जो जानते हैं किसका वोट बैंक, उस वोट बैंक को कैसे तोड़ा जाए, तो उनसे झूठे वादे किए जाते हैं। उनको प्रॉमिस किया कि ये देवेंद्र फडणवीस आपका कमिटमेंट था कि मैं दे रहा हूं, उन्होंने वादा किया था, तो उन्होंने आज वादे से क्यों मुकर गए, क्यों नहीं फैसला कर पा रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है इतना आसान ये नहीं था। तो इनको बोलते हैं इनको रिजर्वेशन देना ही, इनको रिजर्वेशन नाम से चिढ़। इसलिए तो आज जितनी सरकारिया कंपनियां क्यों बिक रही है सर। आपने मराठा आंदोलन की बात की, तो मराठा आंदोलन क्या चाहते हैं? ओबीसी में रिजर्वेशन चाहते हैं, पर इतना आसान नहीं है। ओबीसी में कितने लोग कल से रोड पे उतर जाएंगे, उन्हें अंदाजा है इस बात का। तो आज कैसे देंगे? उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री सेंट्रल इस पर बैठ के बात करती है, क्या रास्ता निकलती है? आज देख लीजिए, कल देखिए इस तरह महाराष्ट्र को इन लोगों ने फंसा के रख दिया है। एक तरफ ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अनैतिक सरकार है, इलीगल गवर्नमेंट है कि लीगल गवर्नमेंट है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट रोज उनको डांटे फटकार लगा रही है नावेलकर साहब को, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये सैयद नासिर हुसैन साहब, बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जातिवाद का जहर खोल रहा है। दैट इज व्हाट द बीजेपी सेज कि आप जातिवाद को इस प्रकार से जहर उगलाकर पूरे देश में आप विष फैला रहे हो। दिस इज, आप 60 साल में तो कुछ किए नहीं, कभी सोचा नहीं। बीजेपी का कहना है कि अगर किसी ने किया, हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ बैठकर 1990 में 27% रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन, बीजेपी क्रेडिट ले रहे हैं उसी का। बीजेपी कह रहा है वी डिड इट, वी हैव डन इट। दिस इज, यू आर जस्ट expounding poison, the venom of poison of जातिवाद। राहुल गांधी जी बार बार जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। आज देवेंद्र फडणवीस 2 दिन पहले कहा कि चिदम्बरम साहब ने इसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया था पार्लियामेंट में। तो एक तरफ आप बोल रहे हो करना और एक तरफ आप ही के लीडर्स पार्लियामेंट में उसको रोकने का काम कर रहे हैं। यू आर, बीजेपी का आरोप है सैयद नासिर हुसैन साहब कि यू आर स्प्रेडिंग द वेनम, द पॉइजनस वेनम ऑफ जातिवाद इन द कंट्री। नासिर साहब देखिए, ये मैं सच है, उसे सच कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मंडल कमीशन विश्वनाथ बीपी सिंह के दौर में आया, पर इसे लागू करने में
नरसिम्हा राव की सरकार का भी रोल है, ऐसा उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने काम नहीं किया। मगर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को क्या सच में मिल रहा है, ये सवाल हमने उठाया ना। आज हम नहीं कहते, उनकी रोहिणी की कमेटी ही बोल रही है कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। 5 से 12% उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। आप देख लीजिए डेटा, क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर बोले कि 90 सेक्रेटरी में सिर्फ 3 ओबीसी के लोग हैं, तो इससे साबित होता है कि कितना परसेंट उनको मिल रहा है। सिर्फ 5% वहां दिखता है। तो आखिर क्या वजह है कि ओबीसी समाज को रिजर्वेशन देने से ये डर रहे हैं? ओबीसी समाज को महिलाओं को रिजर्वेशन में ओबीसी लाने से डर रहे हैं। आप जातिवाद की लड़ाई हम नहीं छेड़ रहे हैं। आज मोदी प्रो में चाहे बीजेपी प्रो में नेशनल के चैनलें जो है वो जातिवाद छेड़ रहे हैं। आप देखिए ना, लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की है, उसे हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस तरह से बैठा के जलील करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह हिंदुस्तान के मुसलमानी समर्थक, यानी यहाँ एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाने की काम की जा रही है। तो हम कैसे हम तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कौन कितना है ये जानने का हक तो है ना। कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने माइनॉरिटी के हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने अपर का, तो ये जानने में क्या बुराई है, इसे जान लेने में क्या दिक्कत है। और आप जातिवाद की लड़ाई तो आप लोगों ने मणिपुर में लगा के जला दिया, आपने नू में जातिवाद लगा के लड़ाया, राजस्थान में लड़ाया, उत्तर प्रदेश में लड़ाया। कहां नहीं आपने जातिवाद की लड़ाई लड़ी है। आपने तो पूरी जातिवाद को ही, पूरे कौम को ही बिखर के रख दिया है। जो आज क्यों कहना पड़ रहा है आरएसएस चीफ को कि हम 5500 साल से हम सेकुलर हैं, क्यों बोलना पड़ रहा है उनको कि आज हम सेकुलर वर्ड बोलते थे तो इन्हें नफरत थी उस सेकुलर वर्ड से। तो आज आरएसएस प्रमुख को, भारतीय जनता पार्टी के पेरेंट बॉडी को बोलना पड़ रहा है कि हम सेकुलर हैं और 500 साल, 5000 साल या 500 साल ऐसा कुछ बोला है, तो कितने सालों से हम सेकुलर हैं। तो आज हम पे क्यों इल्जाम लगाते हो कि हम जातिवाद की बात का। हमने एक आईना दिखाया, बिहार में एक जनगणना रिपोर्ट आया जाति जनगणना का, तो पूरे देश ने ये डिमांड किया। अच्छा, जाति जनगणना के खिलाफ में कोई देश के लोग उतरे, रोड पे आए, पर आप देख लीजिए हमने जो आंदोलन खड़ा किया, आज उसका नेगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया है। हमने कहा था अग्निवीर आप लेंगे तो उनकी सिक्योरिटी क्या होगी। अमृतपाल नाम का एक बंदा कश्मीर में देख कर गए, उनके शहीद हो गए, पर क्या शहादत की उनकी इज्जत नहीं मिली? उनको शहीद की तरह उनको एक एम्बुलेंस से उनको भेज दिया गया, आर्मी के गाड़ी से भी नहीं लाया जाता है। ये क्या हो रहा है? आप आज डिफेंस के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जातिवाद हम नहीं कर रहे, हम जो बोलते हैं वो सच साबित होता है। आज अग्निवीर लोग बच्चों के साथ क्या हो रहा है? 5 साल के जॉब में, कॉन्ट्रैक्ट जॉब में तो आप ले रहे हैं, पर क्या उनकी मुस्तकबिल सेफ है? उनकी फ्यूचर सेफ है? आज वो शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके फैमिली का क्या होगा, उनके आने वाले जनरेशन, कुछ नहीं है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है। 9 साल नासिर हुसैन साहब, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, ये प्राइम मिनिस्टर का नारा है, बीजेपी का नारा है। और जो रिपोर्ट कार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में उन्होंने बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए काम बोला है कि सबसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेके 5th ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, यूपीआई पेमेंट, राम मंदिर, इतना बड़ा लिस्ट लेके सब घूम रहे। बट आज इंप्रेस थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हाईलाइट कर दिया, राहुल गांधी जी ने हाईलाइट कर दिया कि भूख का जो इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इतना हालत खराब है कि 111 आउट ऑफ 125, यानी इतना पीछे है हम लोग। अपने भूखे गरीब जो पोर डाउन ट्रॉडन है उसके बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने बोले, तो इस पे थोड़ा विस्तार में बता देंगे, बिकॉज यहां पर बीजेपी का कहना कि 9 साल एब्सोल्युटली बेमिसाल है, रिपोर्ट कार्ड एग्जाम्पलरी है। हर घर नल से जल से, शौचालय से लेके गैस से लेके हर चीज भर दिया, आवास। तो ये आप जो बार बार कह रहे हैं कि ग्लोबल इंडेक्स में हम इतने पीछे हैं, 111 125 में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज जो ऐलान किया कि ये बहुत नॉन वर्किंग, नॉन डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नासिर हुसैन साहब, नहीं, आपकी सवाल ही जवाब है। 9 साल बेमिसाल, मैं कह रहा हूं 9 साल बेमिसाल आप कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं मैं उसी पे कहता हूं। हंगर डेक्स का रिपोर्ट कोई कांग्रेस बनाती है क्या?
या खरगे साहब ने रिपोर्ट बनाया क्या? ये तो ग्लोबल रिपोर्ट है ना कि भारत में भुखमरी की क्या कगार, पहले कितना था आज कितना है, हमें और घटना चाहिए तो और हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये यही होता है 9 साल बेमिसाल। ये क्या है मुझे नहीं मालूम है, ये कौन सा बेमिसाल यही है 9 साल अडानी के करप्शन, यही है 9 साल बेमिसाल। आज रिपोर्ट आना चालू हो गया ना कि कितना पैसा कहां कहां लगा है। तो आप बताइए 9 साल बेमिसाल वो कैसे कह सकते हैं कि हमने किया? अडानी के करप्शन पे खामोश हो गए, लोग बच्चों की जॉब जा रही है खामोश हो गए, सेल में जॉब चली गए खामोश हो गए, एमटीएनएल में जॉब चली गए खामोश हो गए, एफसीआई में चली गए जॉब खामोश हो गए, एयर इंडिया में चली गए, ओएनजीसी में गए, आंकड़े के साथ बता 3,84,000 बच्चों की जॉब चली गई। तो कैसे बोल सकते हैं कि 9 साल बेमिसाल? सिर्फ आप चंद टॉयलेट को दिखा के आप बोलिएगा देश तरक्की कर रहा है, तो कैसे तरक्की कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को, खास करके हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री को समझाना चाहिए। सिर्फ क्या टॉयलेट बन जाने से देश तरक्की कर सकता है? लेकिन नासिर साहब, जब भी आप ये सवाल पूछते हैं या कांग्रेस ये सवाल पूछती है तो आपको एंटी नेशनल बोला जाता है, ये कहा जाता है कि ये लोग देशद्रोही हैं। नासिर साहब बताएं। देशद्रोही कह देना बहुत आसान है, मगर ये ऐसे देशद्रोही आप बताइए आपने देश के लिए क्या किया है? पहले आपने जंगे आजादी लड़ी है जो आप बोलेंगे कि आप देशभक्त हैं। जो हमने इस देश की आजादी में भाग लिया, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, हमारे पूर्वजों ने जेल के सलाखों में रहे, लाठियां खाई, डंडे खाई, तब जाके हमारे देश की ये आजाद मिलती है, हम आजादी लाते हैं। जिस देश में खाने को कुछ नहीं था उस देश में हम इसरो बनाते हैं, हम बोलते हैं हम देशद्रोही हैं। अरे हम कैसे देशद्रोही, हमें बताइए। हमने एम्स बनाया, आईआईटी बनाया, ना जाने हजारों कंपनियां बनाया, हम कैसे देशद्रोही आप बताइए। आपने कौन सा ऐसा मिसाल बनाया है जो आप बताइएगा कि बेमिसाल है? हम तो बोलते हैं हमने जो बनाया वो बेमिसाल है। हम कहते हैं हमने आईएम बनाया, हम बोलते हैं हमने आईआईटी बनाया, हम बोलते हैं एम्स बनाया, हम बोलते हैं बीएसएनएल बनाया, हम बोलते हैं रेलवे बनाया, हम बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने इसरो बनाया, वेल बनाया, ना जाने कितनी कंपनियां हमने बनाई है। हम बताते हैं हमने ये किया, हम कैसे देशद्रोही? आप बताइए जिस देश 9 साल हमारे पंडित नेहरू जी जेल के सलाखों में रहे, इनके कौन लोग जेल के सलाखों में रहे ये बताइए। कौन लोगों ने जो चंद दिन जेलों में रहे वो भी अंग्रेजों से जाके मिल गए, वो बोलते हैं जो देशद्रोही तो आप है कि आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाते थे, आप हो देशद्रोही। आप जो जंग आजादी को आप लिख दो जगह पर नाज़िर साहब बोल रहे हैं, आप वो भी तो बता दीजिए, वो भी तो बता दीजिए। दो जगह पर, एक बंगाल में और एक सिंध में, दोनों जगह पे। वही क्या क्यूट इंडिया जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसको लिख के देने वालों में से है कि हम इसका मुखालफत करते हैं, ये देश के लिए खंडित होगा। आपने उनके साथ जाके मिल लिया अंग्रेजों के साथ, आप हमें बोलते हैं देशद्रोही है। आप इस देश को नेपाल के राजा को देने के लिए बोलते थे, तो आप हमें बोलते हैं देशद्रोही। आप देशभक्त हो कैसे? आप पंडित है, आप मिलते मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके रहो, आप मुस्लिम लीग के साथ मिलके रहो, आप हमें बोलोगे देशद्रोही है? आपके रिलेशन क्या है आपको बताना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेशन आपका रहा, भारतीय जनता पार्टी का। उस समय जनता पार्टी नहीं थी तो जनसंघ थी, जनसंघ नहीं थी तो आरएसएस थी, पर लिंक तो सबके एक है ना, सब एक दूसरे से रिलेशन। हिंदू महासभा थी और मुस्लिम लीग ने इकट्ठे मिलकर के बंगाल में और सिंध में सरकार बनाई। जब कांग्रेस ने पूरे जगह रिजाइन दे दी, कांग्रेस की सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन में, इन लोगों ने नहीं दिया। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ चले गए। करेक्ट, नहीं दिया। तो आप क्यों पुणे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं वीर सावरकर जी कि मैंने टू नेशन टू थ्योरी की बात की थी? ये हम नहीं, नासिर हुसैन बोलता है या कांग्रेस बोलती है, उन्होंने बोला कि टू नेशन टू थ्योरी की बात उन्होंने की थी। तो देशद्रोही तो वो है जो उनको मानते हैं। पाकिस्तान बनाने वाले लोग वो लोग हैं, जितना जिन्ना गुनहगार है, जितना उससे ज्यादा गुनहगार आप लोग हैं। तो आप हमें देशद्रोही बोलते हो। देशद्रोह बोलने से पहले सोचना चाहिए हम कौन है। हमने इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने कुर्बानियां दी, हमने शहादतें झेली, हमारे पूर्वजों ने झेली, और आज भी हम झेलते हैं, और आज भी हम शहीद होने को तैयार हैं। इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए मरते हैं। हमें देशद्रोही कहने से पहले आपके अपने बैक को देखना चाहिए, अपने हालात को
देखना चाहिए, अपनी जिंदगी को देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। आज गरीबी गरीब होता चला गया। अब देशद्रोही किसे कहते हैं, पहले इसे बताना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है। हमने बता दिया देशद्रोही का यही होता है, आप बताओ हमने क्या देश के साथ किया है। अरे हमने इस देश को बनाया, हमें बोलते हो गद्दार हो? गद्दार तो आप लोग जो इस देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया, महिलाओं के साथ किया, बताइए पूरा नासिर मणिपुर जला साहब, दिया, नासिर पूरा साहब, मणिपुर जला के रख ये दिया। बात जो आप इसको हर बोलते बार हैं बोलते हैं, गद्दारी। एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये, और मैंने कई कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं हर एक से पूछा है कि साहब देखिए, जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया टाटा को बेच दी गई, ठीक है साहब, उसके अलावा जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो उठा उठा के आप बेच रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं नासिर साहब कि ये संपत्ति तो देश की है, किसी सरकार की तो नहीं है, तो आप कैसे बेच सकते हैं? हाउ कैन यू सेल दिस? जैसे एयरपोर्ट्स उठा करके दे दिए, पोर्ट्स उठा करके दे दिए, रेलवेज उठा करके आप दे रहे हैं, हाउ कैन यू डू इट? नासिर साहब बताएं। नहीं, इसलिए ये लोग दे रहे हैं कि इनको अंदाजा नहीं है ना। ये लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी जो है इनकी भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी हो गई है, इसलिए किसी अपने चाहने वालों को दे देगी। क्योंकि इन्होंने 2014 के बाद एक सरकारी कंपनियां नहीं बनाई। मैं बताता हूँ क्यों बेचते हैं, अब मैं बोलता हूँ, अब खुलासा करता हूँ। इनको बेचने का एक मकसद है जो आपने पहले अल्फाज निकाला था, रिजर्वेशन का, तो वहीं से शुरू करता हूँ। ये अभी आपके सवाल का जवाब उसमें आ जाएगा। इनको नफरत है तो रिजर्वेशन से, इनको नफरत है तो दलितों से, इनको नफरत है तो ओबीसी से। मैं समझाता हूं। 1000 कंपनियां जब बनी हिंदुस्तान के अंदर, पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, जितनी भी सरकारी ली, तकरीबन 800-900 कंपनियां, 1000 कंपनियां बनी। सारे सरकारी कंपनियों में रिजर्वेशन था दलितों और ओबीसी। इन्होंने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ भेज दिया। ओएनजीसी बेचा, एयर इंडिया बेचा, रेल बेचा, तेल बेचा, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। तो इनके अंदर जब बेच रहे तो क्या रिजर्वेशन की बात रखी है इस कॉन्ट्रैक्ट में? पूछ के आइए तो कोई रिजर्वेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वहां से उनको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। तो ये दलितों पे हमला है, मैं चैलेंज करता हूं। ये ओबीसी समाज पे हमला है। ये कंपनियां बेच के दलितों के नौकरी को छीनने का काम किया, तो ओबीसी के नौकरियों को छीनने का काम किया, और दलितों के हक को मारने का काम किया, जो इनका हिडन एजेंडा था रिजर्वेशन खत्म करने का। तो डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते, तो बैकडोर से खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है बजाज भाई, उस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए ये पूरी नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए सरकारी कंपनियों को बेच के दलितों के हक को मार रहे हैं। आज पूरी ओबीसी और दलित समाज देख रही होगी कि कैसे उनके हक की हत्या की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की थी। इसलिए ये कंपनियों को बेच रहे हैं। नासिर हुसैन साहब, ये तो हो गए, मगर बीजेपी का कहना है कि सोशल इंजीनियरिंग, सोशल एम्पावरमेंट को उससे सीखे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के हिसाब से उन्होंने वुमन का सोशल एम्पावरमेंट किया, अपलिफ्टमेंट कर दिया। वुमन अपलिफ्टमेंट सिर्फ उसी से नहीं है, उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उन्होंने कंटिन्यूस एक कैंपेन चलाया। महाराष्ट्र में लेख लड़की, आप लड़की जन्म होता है तो उनको टोटल प्राइवेटाइज करता है, उनको बेनिफिट देते हैं। तो हमने उस रेशो, सेक्स रेशो को चेंज किया। ये 2014 से लेके 2023 तक जो मेहनत किया है उसका नतीजा है कि आज सेक्स रेशो जो वुमन के हैं वो मेल से ज्यादा हो गया। पहले 1000 मेल था तो 950 के आसपास फीमेल थे। बोले 2014 के बाद जो हम एम्पावरमेंट वाले हम लोग इश्यूज लेके आए, बेनिफिट देने शुरू कर दिए, तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड को हमने रोक दिया। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो फीमेल जैसे पैदा होते उनको मार डालता था, वो पूरे चेंज हो गए। आज सेक्स रेशियो बढ़ा है, फीमेल्स ज्यादा हो गया है। बोले मोदी राज में, मोदी के काल में, बीजेपी का कहना है कि 1020 हो गया पर 1000। क्या आप इसमें बिलीव करते हो कि ये बीजेपी के जो स्ट्रेटजी है, बेनिफिट्स है, उसके वजह से सेक्स रेशियो चेंज हो गया? देखिए, ये शायद बीजेपी बोलते बोलते ही वो फंस जाती है अपने बात में। आपने एम्पावर की बात की है। पहले क्या था कि ये सच है कि गर्भपात का रेशियो ज्यादा होता था, क्योंकि लड़का लड़की की भेदभाव थी लड़कियों को। उसको इस सरकार किसने ये कानून लाके इसको रोका गर्भपात का? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का हम लोगों ने ही बैन किया था कि इस पे रेशियो बढ़ना चाहिए लड़कियों की। तो आपको बात है, क्रांति कोई एक दिन में नहीं आता। जब ये कानून बनता है उसकी असर आने में 10-15 साल लगता ही है। तो आप देखिए, तभी ये रेशियो बढ़ रहा है कि कांग्रेस की ये जो सोच रही है, क्योंकि उस समय एक मेल फीमेल की एक लोगों में सामाजिक ये नहीं था। वो समझते लड़का ही उत्तराधिकारी बनेगा, लड़कियों को समाज में थोड़ी निचली दर्जा दी जा रही थी।
क्योंकि देश धीरे धीरे आजाद हुआ तो लोगों की सोच भी बदल नहीं रही थी, तो उसको बदलने में टाइम लगता है। आज अगर एक नतीजा है तो वो कांग्रेस की वजह से एम्पावर हो रहा है। आप बोलते हैं कि लड़कियों को एम्पावर करो, इसमें अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, मगर लड़कियों के साथ जब नाइंसाफी होती है तब आप खामोश हो जाते हैं, तब वो एम्पावर कहाँ चला जाता है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिजभूषण इसी खिलाड़ियों के साथ, इसी महिलाओं के साथ कितनी तरह के अत्याचार करते हैं, और जबकि महिलाएं रोड पे बैठ जाती हैं, देश की खिलाड़ियां रोड पे बैठ जाती हैं, तब उनको एम्पावर करने की बात कहाँ, तब क्या असर जाता होगा उन बच्चियों पे, आप बताइए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये मैसेज कितने करोड़ों लड़कियों के पास जाता होगा कि ये सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है। आप इसी तरह की उन्नाव में होता है, नू में होता है, कई जगह आप अखबार उठा ले, रोज कोई ना कोई बलात्कार हो रहा है। आम लोग भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, पता नहीं कौन कौन, इस तरह के लोग हरकत कर रहे हैं, ये एम्पावर है। अब गुनाह होना अलग बात है, उस गुनाह पे खामोश होना उससे बड़ा भी गुनाह है। तो आपने एम्पावर करना था तो उन लोगों को टाइम पे सजा देते, टाइम पे उनको जेल देते, तब उनमें डर पैदा होता है, उसको बोलते हैं एम्पावर करना। ये सिर्फ बातें हैं जो मीडिया में चलाते हैं, वही न्यूज चलता है, वही आप सच मुद्दे पे हम कभी डिबेट कर ही नहीं पाएंगे, हम क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं पाते कि आखिर देश में इतनी नफरत क्यों है, क्यों नफरत खत्म नहीं हो रही है, क्यों समाज टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया है, एक समाज दूसरे समाज के साथ बैठने को तैयार नहीं है, सब समाज एक दूसरे को कत्ल करने में लगा है। आखिर क्यों है, क्यों हो रहा है, कौन ये नफरत की बीज बो रहा है, ये इसके पीछे जाना चाहिए। नासिर साहब, कल इसी विषय में कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, वेणुगोपाल जी ने मेटा को लिखा है, हाँ, मेटा को लेटर लिखा था कि सोशल मीडिया को प्लीज कंट्रोल कीजिए, बिकॉज जिस प्रकार से नफरत फैला रहा है सोशल मीडिया में, तो ये सोशल मीडिया में मेटा को आपको लिखना पड़ा, पूरा इंडिया अलायंस एक होके इस चीज को उन्होंने कहा कि हाईलाइट कर दिया मेटा को कि आप इसको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो पूरा डिवाइड, पूरे देश में एक डिवाइड बन जाएगा हिंदू मुसलमान का। तो उस पर जरा रोशनी डालिए, क्या ये इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद हुआ, क्या कैसे हुआ ये? नहीं, मैं बता रहा हूं, इजराइल की बात हुई थी। इजराइल की एक बहुत मशहूर अखबार है हैरिच, जानते होंगे जी, हैरिच एक बहुत बड़ी अखबार है वहां की। आप उसकी अखबार को जब आप पढ़ेंगे वहां की, चाहे आप ट्विटर पे पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, तो आप देखिएगा वो इजराइल गवर्नमेंट के खिलाफ कितना लिख रहा है। वो लिखता है कि जितना गाजा के लिए रोना चाहिए उतना इजराइल के लिए भी रोना चाहिए। आज गाजा पे रोने वाले कम है, इजराइल पे रोने वाले ज्यादा है। वो हम नहीं लिखते, वो इजराइल के संपादक के एडिटर भी लिख रहा है। आज बोलते गाजा में मूल अधिकारों से लोगों को वंचित किया जा रहा है। वो क्या हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार वहां जो पहुंचे हैं, वो सुबह से शाम एक सिर्फ रोड की बिल्डिंग का इनका फोटो वीडियो दिखा के बोलते हैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है। जहां एक्चुअल हमला हो रहा है वहां का रिपोर्ट किसी के पास आ रहा है क्या? सिर्फ हमें धुआं दिखता है। पर जब आप बीबीसी देखिए, हैरिस देखिए और दूसरे अखबार, दूसरे अल जजीरा देखिए, तब रिपोर्ट दिखता है कि वहां पे क्या हो रहा है। कल बीबीसी के एकदम रिपोर्ट देख रहा था, एक रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, उसके चाहने वालों को जब मार दिया गया, छोटे मासूम को मारा गया। एक महिला रो रही थी, बोलती है मेरे बच्चे अलविदा 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 कहते जब गोदों में ले रही थी, आंखों में आंसू आ जाता है। कैसे वो माँ बर्दाश्त करती होगी ऐसे झूठ को, नफरत को फैलाया इस समाज ने। तो जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज, टेक योर टाइम, हैव सम वाटर। तो इसलिए ऐसे झूठे वीडियो से आज हिंदू मुसलमान समाज को लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मेटा को लिखा गया कि रिपोर्ट सही करो, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये कौम की लड़ाने की बात हो रही है। आज गाजा, हमने कहा था फिलिस्तीन का हम सपोर्ट करते हैं, हमने कभी हमास को सपोर्ट नहीं किया। जो टेरर अटैक इजराइल की हम उतना ही निंदा करते हैं जितना आज गाजा पे हो रहा है, वो भी उतना निंदनीय है। आप एक हमास को मारने के लिए 20 लाख लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 10 लाख लोगों को तो घर से बेघर कर दिया ना नासिर साहब। तो आज क्या है, सच्चाई लोग देखना नहीं चाहते हैं जी। सच्चाई से लोगों ने मुंह मोड़ लिया है। इजराइल को, फिलिस्तीन को इस तरह दिखा रहे हैं जैसे हिंदू मुस्लिम का वार हो रहा है।
या 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी भी यही कहते थे, अरब की जमीनों पे तुमने नाजायज कब्जा किया, उसे खाली करना चाहिए। हम कहते हैं 1948 के फैसले, 1977 की बात हो, 1948 के फैसले पे ही आ जाओ, जो यूएन का फैसला था उसे ही लागू करो। एक दो देश बनना चाहिए, तभी ये मसले का हल होगा। आप हमास को कुछ भी करो, हमें उससे ऐतराज नहीं है, पर निर्दोष फिलिस्तीनियों मरेंगे तो हमें तकलीफ होता है। हम लेकिन देखते हैं नासिर साहब ये बच्चों की। बताएं, लड़ाई हो रही है कहां पर? पैलेस्टाइन में, ठीक है सर। राइट, पैलेस्टाइन कहाँ है? रेड सी के पास है। इस तरफ रेड सी है, आगे जाकर के मेडिटेरेनियन है। सर आप मुझे ये बताएं, उस लड़ाई को लेकर के भारत के मुसलमानों को विलन क्यों बनाया जा रहा है? आप ये तो बताएं। ओ यार, मतलब मेरी समझ के बाहर है, हमारा क्या लेना देना है यार उससे? ये सोशल मीडिया का दौर है, नहीं कह रहा हूं कि सभी हमें अटैक कर रहे हैं। जी। दूसरी बात, ये सोशल मीडिया एक झूठ की इतनी प्रोपेगेंडा फैलाया है। आप ट्विटर देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, एक अलग अलग तबके को अटैक किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल में 2-4 जामिया के बच्चों को बुला लिया जाता है, 20-22 साल के बच्चे, उनको बैठा के उनसे अजीब अजीब क्वेश्चन करके पत्रकार फंसा देता है, फिर उसे बोलते हैं ये मुसलमानों की राय है। अरे किस तरह की आप बात करना है, स्कॉलर से बात करो। आप बात करना है उनसे, आप अनाप शनाप लोगों को बैठा के, जो बच्चों को ज्ञान नहीं है उस टॉपिक पे, उसको बैठा के आप अपने चैनल का टीआरपी थोड़े देर के लिए बढ़ा सकते हैं, कौम को बदनाम कर सकते हैं, पर क्या सच्चाई है? आज बताया ना, हेरिटेज कितनी अखबारें वहां लिख रही है, वो अखबारें पढ़िए, वो सरकार के खिलाफ बोलती है, सरकार इस्तीफा दो, ऐसे सरकार को रहने का हक नहीं है। ये हम नहीं कह रहे वहां की अखबार लिख रही है, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो अखबार अपनी आवाज उठा रही है, हमारे हिंदुस्तान की तरह नहीं है जो दुनिया की सबसे अंतिम रैंक पे मीडिया पे पहुंचती जा रही है। वहां की अखबार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। तकलीफ क्या है नासिर साहब, लिख रही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, तकलीफ क्या है कि किसी को मालूम ही नहीं है कि देयर वाज एन ऑस्लो एग्रीमेंट। ऑस्लो एग्रीमेंट जिसके अंदर अमेरिका वाज द स्पॉन्सर, उसमें क्लियर कट ये था कि भाई फिलिस्तीनियों की ये जमीनें रहेंगी, उनको ये हक मिलेंगे, यहाँ तक Yes, उनका yes, जमीन right. रहेगी, Yes. यहाँ तक ये रहेगा। Yes, sir. जैसी बिन्यामिन नेतन्याहू साहब आए, वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने, and this is for our viewers also by the way, the Palestinians had their farms, they had so many other things, उन सबको उठा के आपने वहां से खत्म कर दिया। वहां पर आपने इजरायली सेटलर्स बसा दिए, किबुट्स बना दिए वहां पे। अब वो, द प्रॉब्लम इज, उन सब चीज़ों को कोई याद नहीं रखता है, नंबर एक। नंबर दो, हामस ने जो किया, जैसे नासिर साहब ने पिछली बार कहा था, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन द फैक्ट रिमेन, सच तो बोलो यार। मेरा ये कहना है, कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार हो, बाहर की सरकार हो, वी एक्सपेक्ट पीपल टू टेल द ट्रूथ। आपको लगता है कभी कोई सच बोलेगा क्या यहाँ पे? नहीं, सच इसलिए नहीं बोल सकते मैं कह रहा हूँ ये उनके एक पसंदीदा टॉपिक हो गया है जी। कि कॉमनल करना, हर चीज में कॉमनल हो जाना चाहिए। बात वहां देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों का इसमें कोई लेना ही देना है। एक ये है कि एक बैतुल मुकद्दस वहां पे है, मुसलमानों का एक जुड़ाव है फिलिस्तीन में, क्योंकि आपको मालूम है वो बहुत बड़ा हमारा पूजने का जगह है। वहां वो किबला था, जब मक्का नहीं था तो पूरी दुनिया के मुसलमान उधर ही अपने नमाज पढ़ा। मक्का की तरफ नमाज पढ़ने के बजाय यरूशलेम की तरफ पढ़ा करते थे जी। यरूशलेम, हाँ, किबला, और वो काफी लगाव है। तो एक अलग चीज, पर आप उस लगाव के वजह से आप बोल दो कि ये हमास है, आप हमास को समर्थन करते हैं, तो मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। हमास ने जो किया पूरी टेररिस्ट है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली बोला है कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, मैं बोलता हूँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बात सर, इसका मतलब ये हुआ, फिर कांग्रेस को उसमें जबरदस्ती डालने का काम किया जा रहा है। फिलिस्तीन को हम फिलिस्तीन को जब बोलते हैं कि उसके, अरे चलिए मैं बोलता हूँ फिलिस्तीन को सपोर्ट, कल विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, उन्होंने भी बोला फिलिस्तीन को उसकी जगह। एक मिनट सर, भारत की सरकार ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं डिक्लेयर करती? मुझे ये समझ में नहीं आया। हम तो कह रहे हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की सरकार भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसे कर दे, खत्म हो जाता है। Now, does that mean, I'm asking you a different question. मगर सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम लोग बोल रहे हैं, पर भारत की सरकार हमास को अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं नासिर साहब, यहां तो आपने मुसलमानों को बदनाम कर दिया कि ये देखो ये हमास के साथ खड़े हैं,
विच इज एब्सोल्युटली अनट्रू, बिल्कुल गलत है। तो मणिपुर की कवरेज क्या इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहां पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, कि हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन है, ये है क्या? मतलब आई रियली वुड लाइक टू नो। अरे भाई वही तो मणिपुर में हुआ है ना, विमेन हैव बीन रेप, गैंग रेप, बच्चों को उठा उठा के मार दिया गया दोनों तरफ से, सब कुछ हुआ है, ड्रग ट्रेड वहां पर है, ड्रग लॉर्ड्स वहां पर हैं। तो मतलब व्हाई आरंट वी कवरिंग दैट? बिकॉज वहां पे हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। मैंने पिछली बार यही सेम सवाल मैंने आपको कहा था कि हमारे हिंदुस्तान की मीडिया वहां पहुंचने में बहुत देर कर दी, ना आज तक बोल पाए। और खामोशी तो यहाँ तक है कि आज भी मणिपुर में कोई शांति नहीं है। आज भी वहां वही नहीं है सर, नहीं है, जो नहीं कल थी। आज भी नागा और दूसरी समाज आपस में लड़ ही रहा है, मैती हो, नागा हो, दूसरी समाज हो, मिती वर्सेस कुकी। इस बार नागाज इन्वॉल्व नहीं है सर, थैंक यू, थैंक गॉड। तो अच्छा, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस नासिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कांग्रेचुलेशंस, इंडिया हैज जस्ट वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 7 विकेट्स। 7 विकेट से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया सर। सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। What a stupid match anyway. Because the Pakistanis didn't play at all, or maybe the Indian team was too good. मुझे उम्मीद भी था कि हम जीतेंगे जी, मगर इस पे अच्छा हुआ आपने ये ले आया और ये जीता एक तरह से देश के लिए आज बहुत खुशी की बात थी। मगर इसी पाकिस्तान खिलाड़ियों को हम लोग मुखालफत करते थे इस देश में नहीं लाना है, आज उसी गुजरात में उसको ग्रांड वेलकम मिलता है जी, यही इनका राष्ट्रवाद है। Very strange. एक तरफ ये लोग हमारे दौर में ये जब खेलने आते थे पूरी पिच को उखाड़ देते थे, लड़ने मरने को खड़े हो जाते थे। आज कहाँ गए इनकी राष्ट्रवाद? आज कहाँ गए? 2 स्पेशल ट्रेन चला है मुंबई से 2 स्पेशल ट्रेन वहां पर भेजे हैं। सर आप कुछ बोल रहे थे, मणिपुर के बारे में कुछ बोल रहे थे, जरा बताएं प्लीज। मैं खेल की मुखालफत में कभी रहता नहीं हूँ, खेलना चाहिए, इसमें मैं मुखालफत नहीं करता। पर ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा अल्फाज रहती थी कि ये राष्ट्रवाद है, जब तक ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये टीम नहीं आना चाहिए देश में, इसलिए मैंने ये अल्फाज निकाली और अचानक वो। हाँ, बात कर रहे थे मणिपुर की। मणिपुर की समाज में जो आप इजराइल में जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपने आप को लोग शो कर रहे हैं, पत्रकार जो भी एंकर वहां जा रहे हैं, मैं एक पत्रकार का नाम नहीं लेता हूं, जितने भी गए आज उनके एक एक चैनल के लोग वहां जाते हैं तो समाज आज लोगों में हिम्मत आती, लोगों को मालूम पड़ता है कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। पर वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहां पे तो समाज ही अलग था ना, नागा और कुकी। और एक बार मैंने कहा भी था, इन लोगों ने ही मदद मांगी थी कुकी समाज से, इन्होंने ही कहा था कि हमें वोट देना। कुकी समाज जो आतंकवाद में लिप्त थे, जो टेरर में लिप्त थे, उनसे और हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे मदद मांगी थी। तो आप इसलिए वो खामोश थे, उनको मालूम था इसको मैती को कुकी से लड़ा दो तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती। मगर हमारे हिंदुस्तान की मीडिया वहां पहुंचने में बहुत देर कर दी और इतनी देर कर दी कि पूरा मणिपुर ही जला। तो मणिपुर के लोग देख रहे हैं, सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज वहां पे जाते तो कौन से मुसलमान को आप टारगेट करते, कौन से आप दूसरे समाज को टारगेट करते, आज क्यों नहीं टारगेट? आज देख लीजिए पंजाब के अंदर, मैंने अभी कहा ना, आपने मणिपुर की बात, आज आपने क्यों नहीं अमृत जी की बात करी जो शहीद हो गए कश्मीर में। बजाज भाई अग्निवीर में बेचारा शहीद हो गए पर उनको घर वालों को कुछ नहीं मिला। नासिर साहब आज उसी ने, आज बीजेपी ने खुद 370 बोले, आर्टिकल 370 का प्रशंसा करके एक टूल है 2024 में जीतने के लिए। 370 आर्टिकल 370 लाकर हमने कश्मीर का काया पलट कर दिया है। आज बीजेपी का ऑफिशियल लाइन है 370। बोले 3 परिवार बर्बाद किए कश्मीर को, एक गांधी फैमिली, एक अब्दुल्ला फैमिली और एक मुफ्ती मोहम्मद फैमिली। चलिए 370 के बाद जब से उन्होंने लागू किया, हमने हिमाचल जीता, वही 370 लेके हिमाचल भी गए थे, वही 370 लेके वो कर्नाटका भी गए थे, वही 370 लेके वो कई बाई इलेक्शन में भी गए। हम हर जगह उनके मुंह पे तमाशा दे रहे हैं क्योंकि जनता जान रही है कि ये 3 और वही 370 में अभी देखिए कारगिल में अभी इलेक्शन हुआ, हम जीत के आ गए, लद्दाख में, सॉरी। तो आप बताइए, कारगिल में सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कारगिल में हिल काउंसिल, कारगिल कहा हिल काउंसिल, तो आप हम जीत के आ गए। तो आप बताइए कैसे इनकी 370 का असर है आवाम के अंदर। अब इनसे पूछिए कितने 370 के बाद है, इनकी 370 की हवा निकल गई है। कुछ आप कश्मीरी पंडितों को आज भी वहां से छोड़ना पड़ रहा है जबकि इनकी सरकार है। क्यों छोड़ के वो जम्मू की तरफ मूव कर गए? क्यों आज भी वहां पे दंगे हो रहे हैं? क्यों वहां पुलिस स्टेशनों को
3500 कितने लोगों का आज मेरे पास रिपोर्ट है कि वहां पे 3500 पुलिस जब से इनकी 370 आती है 3500 पुलिस को मार दिया गया है, कितने पुलिस स्टेशन को जला दिया गया है। तो क्या 370 का ये रिपोर्ट मुझे दिखा रहे हैं? तो 370 क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, 370 के बारे में कुछ भी, ये सिर्फ हवा में बात करते हैं। इनको 370 के बाद अगर कश्मीरियों को उनकी हक मिल जाए, उनको उनकी रहने की जगह मिल गई, वहां सुख शांति आ जाए, तो कोई उसकी मुखालफत नहीं करता है। हम चाहते 370 कांग्रेस ने यूं ही नहीं थोप दिया था, 370 लाने के पीछे बहुत बड़ा काम रहा होगा, उसके Sir, पीछे का that'll be a बैकग्राउंड very देखना long पड़ेगा। show. We have promised that show, sir. Is it- एक दिन आपके साथ 370 पे और जम्मू एंड कश्मीर पे शो करना है आपके साथ। बिल्कुल आप करिए। 370 क्यों आया कश्मीर, कैसे मैं जी, उसको दुरुस्त बताता बात। हूँ डिटेल में। 370 यूं ही नहीं बन गया था एक दिन I का agree बात with है you. कि सपने में आया और 370 लग गया। जी आप पूछिए Sir, Article 370 was the only instrument by which India had access to Jammu and Kashmir. People forget that. Yes. तो but anyway, we'll talk about that. लेकिन आप ये बता दें, prediction sir, prediction time. जाने के पहले 5 स्टेट में इलेक्शन हो रही हैं, कितने जीत रहे हैं आप सर? मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर से कहता हूँ, हम 5 के 5 जीतेंगे। क्या बात है सर, वंडरफुल। क्योंकि हम पूरी यूनाइटेड, देखिए मैं इसकी दो तीन बात बोलता हूँ, 2-1 मिनट करके बात खत्म करूंगा। आज की तारीख में पूरी हमारी पार्टी यूनाइट है, आज कोई गुट नहीं है। आप देख लीजिए, आप चलिए सबसे पहले आप राजस्थान में जी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये 2 गुट था, ये दोनों गुट खत्म हो गए। अब ये दोनों पार्टी के एक सिंबल, एक पंजा बन गए हैं। अभी कांग्रेस के परचम के नीचे ये लड़ रहे हैं और इनको कांग्रेस का परचम दोबारा लहराना है। इसके लिए काम, ना कोई अशोक गहलोत है आज के तारीख में, ना कोई सचिन पायलट है, चेहरा एक ही है तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस के चेहरे पे लड़ाई हो रही है और कांग्रेस ही जीतेगी। तेलंगाना में उनके करप्शन को देख लिया, हमने तेलंगाना बनाया, हमने तेलंगानाओं को हक दिया और हमारे साथ उन्होंने धोखा किया, तो उनको आज तेलंगाना वासियों को समझ में आ गया, जो अपने लिए सिर्फ महल बनाता हो हमारे लिए काम नहीं, इसलिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में घोटाला ही घोटाला, इतने घोटाले हैं कि ये नहीं। अभी देखिए ना, हमारे खिलाफ पहुंच गए इलेक्शन कमीशन, प्रियंका गांधी के खिलाफ। गजब के लोग हैं। हमने जो मैनिफेस्टो में डाला वो रिपीट करते हैं, तो बोलते हैं ये लालच दे रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, मैं 2005वीं तक आएंगे तो 2000 दूंगा, 3000 दूंगा। इनके लिए इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंच रही, हमारे प्रियंका गांधी जी के लिए मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन में जाके इन लोग कंप्लेन करते हैं। अरे हमारे जो मैनिफेस्टो का हिस्सा है, हम बार बार बोलेंगे, मैनिफेस्टो का हिस्सा जो है उसे चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। इसमें कौन सा हमने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ काम किया है? जो होगा देखेंगे। तो बोलते हैं वहां भी हम जीत के आ रहे, क्योंकि इनके करप्शन बहुत है। मैंने 220 तरह के घोटाले हैं उनके। इसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ में हमारे इतने काम हमने ट्राइबल और के लोगों के लिए काम किया है कि आप वहां 20 साल तक वो वहां नहीं आ सकते, मैं दावे से कह रहा हूं, इतने काम किए हम। तो आप छत्तीसगढ़ में भी हम जीतेंगे, तेलंगाना भी हम जीतेंगे, और मिजोरम भी हम जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे, मिजोरम भी जीतेंगे, बोला ना, मिजोरम भी जीतेंगे। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, लवली टॉकिंग टू यू। करेंगे तो बोलते हैं ना, मैं एक लाइन कहता हूं, मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखालफत, तू वक्त का तकनसी है सिर्फ, मेरा कोई खुदा नहीं। तो मैं इनके मुखालफत करता रहूंगा। तो मैं इनसे डरने वालों में से नहीं हूं। मैं, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, मुझे मालूम है इनके घोटालों के, मैं पर्दाफाश करता हूं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, नाज़र साहब, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्कार। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू। Right, another moment with us from the BJP, we are our old friend Mr. Sanjay Thakur. Sanjay Thakur साहब, नमस्कार। Do we have the guest from the BJP connected or do we have to reconnect him? वंदे मातरम सर। अरे वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, क्या हाल है? आज आप अपने बढ़िया, एकदम बढ़िया। आज आपने अपने भगवा बिहार कपड़े साहब नहीं पहने हुए। क्या बात है सर, ये क्या हो गया? क्या पार्टी चेंज कर ली? पार्टी कहाँ से चेंज होगी? तो आज मोदी जी आए थे बॉम्बे मुंबई जी जी जी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141st सेशन का इनॉग्रेशन उन्होंने किया। मतलब कि अब भारत जो है वो पावर हाउस बन गया है तकरीबन हर एरिया में। आप देखिए ना,
इंडस्ट्री में, ट्रेड में, बिजनेस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और सबसे बड़ी बात है मेरे खुद के लिए जो व्यक्तिगत तौर पे मुझे जो खुशी होती है स्पोर्ट्स में, जबरदस्त सर। और बाय द वे कंग्रेचुलेशंस, इंडिया हैज जस्ट वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया अभी 7 विकेट से अहमदाबाद में, आपको बधाई हो। पूरे देश को बधाई सर, पूरे देश को बधाई। बधाई हो सर, बधाई हो। कभी कभी मिठाई भी भिजवा दिया करें। बधाई तो ठीक है, आप बधाई तो ले ही लेते हैं, लेकिन कभी भिजवा दिया करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन सर ये बताएं कि अभी 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। आप ये बताएं, हर जगह पर मोदी जी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि मोदी जी मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है, तो फिर मोदी जी को क्यों वोट दें? लोकसभा में मानते हैं, लोकसभा में मोदी जी को वोट देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टेट इलेक्शन में सिर्फ मोदी जी का चेहरा, इसका क्या मतलब हुआ? संजय ठाकुर साहब। ये मिजाज साहब, इस तरह की बातें, जो हारे हुए लोग हैं, हताश लोग हैं, जिनके अपने कोई लीडरशिप नहीं है, या जो सिर्फ क्षेत्रीय छत्रप हैं, वही लोग इस तरह की बातों का प्रचार करते हैं जी। क्योंकि उनके पास अपने कोई नेशनल स्टॉलवर्ट है नहीं, और वो इस बात का कोई जवाब भी नहीं दे सकते। उनको चाहिए भी नहीं, उनको लूटना है। एक स्टेट पकड़ के उसको अपना कुनबा समझ के वहां पे लूट लेना है उनको, और उसके लिए उनकी दुकान तभी चल सकती है जब भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादियों की सरकार ना आए। इसलिए इस तरह का दुष्प्रचार वो लोग किया करते हैं। ये यथार्थ सत्य है कि आदरणीय मोदी जी को पूरा देश मानता है, मोदी जी को अपना मानता है, अपना बच्चा मानता है, अपना नेता मानता है, अपना सेवक मानता है। इसलिए देश तो मोदी जी के साथ है। अब ये लोग जो मर्जी वो कह ले, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो 5 प्रदेश जीत रहे हैं ना, इनके नेता राहुल गांधी जी है ना जी। राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी भारत देश में क्या है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठाकुर साहब, आपका 9 साल बीजेपी का जो एकदम प्रचार है कि 9 साल बेमिसाल, और मोदी साहब के रिपोर्ट कार्ड जबरदस्त है। नेशनल इश्यूज से लेके इंटरनेशनल इश्यूज से लेके हर घर में शौचालय से लेके हर घर नल से जल से लेके आवास योजना, हर चीज कवर्ड है। मगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने आज जो इंटरनेशनल, जो यूएन का ग्लोबल इंडेक्स हंगर, जो भूखे लोग हैं, उसमें इंडिया 125 में से 111 में है। यानी बहुत, हम वो रिपोर्ट के हिसाब से हम अपने भूखे और जो गरीब लोग हैं, गरीब से गरीब लोगों का कुछ ख्याल नहीं रख रहे, हम हंगर को कंट्रोल कर नहीं पा रहे। तो फिर इतना बड़ा रिपोर्ट कार्ड जो मोदी साहब के है, अगर खड़गे साहब का बात माने तो शून्य हो जाता है कि इतना पिछड़ा है, हम अपने भूखे नंगों का ख्याल नहीं कर पा रहे, हंगर को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? द रिपोर्ट कार्ड फेल्स। ठाकुर साहब, देखिए, मैं पता नहीं रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या कहूं, लेकिन मैं खड़गे साहब की बात और रिपोर्ट कार्ड को मान भी लूं नामबियार साहब, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। शर्म से डूब मरने की बात कांग्रेस के लिए ये, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक लगातार अगर 65-67 सालों तक किसी ने इस देश पे राज किया है, तो यही कांग्रेस के लोग, यही दावा करने वाले लोगों ने राज किया है। उसके बावजूद भी जब इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 5 साल में सारी स्थितियों को, इंस्टीट्यूशंस को, संवैधानिक संस्थाओं को, सारी चीजों को ठीक करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में गुजरते गुजरते कोविड आ गया, और पिछले 4 सालों से तो हम देश की 80 करोड़ 140 करोड़ में से 180 करोड़ को तो खाना ही सरकार खिला रही थी। तो ये तो इंडेक्स पे आपके जो दिख रहा है, ये तो दिखना ही है। तारीफ की बात यह है कि जिन लोगों ने इतने सालों तक राज करके इस देश को भूखा नंगा ही रखा, 9 सालों में ही उस देश को संभालकर, उस देश को विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी और आपदा से बाहर निकालकर, इतनी बड़ी आबादी को भूखे नहीं मरने दिया और सबका पोषण कर लिया, और हर दिन भारत तरक्की कर रहा है। भारत 5वीं चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है। भारत हर फोरम पे अपने आप को साबित करने में सफल हुआ है, और आप जहां देखें इंटरनेशनल फोरम पे, वहां अगर भारत दिख रहा है तो कौन विश्वास करेगा खड़गे जैसे विरोधियों का? और उनका एक जबरदस्त कैंपेन चल रहा है ठाकुर साहब, हर स्टेट में। जैसे प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में, शी गोज देयर फॉर कैंपेनिंग, बोले कि 18 साल में बीजेपी का 250 घोटाले हुए।
और उनका कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज बीजेपी रूल स्टेट्स में इस्तेमाल नहीं करता। प्रियंका गांधी पॉइंट्स आउट व्यापम घोटाला 2500 करोड़ या 2000 करोड़ और 50 लोग मरे, उसका कुछ अभी तक सॉल्यूशन ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, टोटल बाहर कुछ निकला नहीं है। फिर वो बोलते हैं मेडिकल चक्रवर्ती घोटाला, नर्सिंग घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, एक से एक घोटाला बने, 280 घोटाला गिनाए। तो वहां पर सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग नहीं करना, यह चार्ज है आप पे कि you don't use the central agencies in BJP rule states and you allow corruption to flourish, and that goes against Narendra Modi ji, Prime Minister Modi ji's statement himself that न खाऊंगा न खाने दूंगा। ठाकुर साहब देखिए नामबियार साहब, ये जो दावे से बीजेपी के कैंपेन में हम लोग कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के दोस्त तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी के विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी के दामन पे भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा सकते। बहुत देर से समझते हैं कांग्रेसी, इनको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी की यही इमेज है, बेदाग छवि है नरेंद्र मोदी जी की। तो इन लोगों ने एक नया कैंपेन शुरू किया, जानबूझ के झूठ बोलने की आदत है और झूठ इतनी 1000 बार बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला, इनकी पीआर एजेंसी ने बताया कि आप बोलना शुरू करो कि बीजेपी सरकार में घोटाले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, घोटाले। और कौन बोल रहा है नामबियार साहब? प्रियंका गांधी जी। कौन है प्रियंका गांधी जी? घोटाले की नातिन, घोटालेबाजों की बेटी, घोटालेबाज की बीबी और खुद घोटालेबाज प्रियंका गांधी जैसे लोग अगर घोटालों का आरोप लग, जिनके माँ जिनके भाई घोटालों के आरोप में बेल पे हो, अगर वो नरेंद्र मोदी जैसे स्वच्छ छवि के नेता के ऊपर घोटाले का आरोप लगाएंगी तो कौन मानेगा उनकी बात को? लेकिन ये विरोधी पक्ष हैं, विरोध में बोलना इनका काम है, इनका धर्म है, और इनके पैरों तले इनकी जमीन खिसकी हुई है, बिना सत्ता के जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। तो पीआर एजेंसियों की सलाह पे अनर्गल तोहमत लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर नरेंद्र मोदी जी की छवि को दागदार करना चाहते हैं। लेकिन सांच को कोई आंच नहीं होती है, और कम से कम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को तो भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। ठाकुर साहब, दूसरा है कि जब तक मोदी साहब ने क्लियर कट कहा कि इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, वी डिनाउंस द टेरर एक्टिविटीज ऑफ हामस, क्लियर कट मोदी साहब ने सपोर्ट भी किया इजराइल्स राइट टू रिटेलिएट। मोदी साहब वाज वेरी वेरी क्लियर। और 2 दिन पहले खरगे साहब ने इंडिया अलायंस के माध्यम से लेटर लिखा मेटा को लेटर लिखा कि आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कीजिए, जो कम्युनल हेट्रेड, कम्युनल डिसहार्मनी और अलग अलग जो देश को विभाजित करने वाले भाषा जिस चल रहा है सोशल मीडिया में, इसको आप कंट्रोल कीजिए। तो ये कैसे आप देखते हो कि इंडिया अलायंस जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से मेटा, फेसबुक और पूरे अलग सोशल मीडिया को इंचार्ज को, मालिक को लिखता है कि आप कंट्रोल कीजिए, डिसहार्मनी फैला रहे। तो कौन फैला रहे डिसहार्मनी सर? तो क्या उनका इशारा कहां पर है? ये कांग्रेस के ही शांति दूत हैं। आप जिनके अगर आप ट्विटर आईडी और फेसबुक आईडी देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा इन लोगों को इतनी सी शर्म नहीं आती कि जो स्टेट इस समय एट वॉर है उसके सारे नेताओं ने अपने आपसी मतभेद भुला दिए हैं और वो एकजुट होकर हमास के हमले की तरफ लड़ रहे हैं। लेकिन एक देश भारत है जो सदियों से, कई दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है, और सबसे ज्यादा आतंकवाद का नुकसान अगर किसी देश को हुआ है तो भारत को हुआ है। और इसी बेसिस पे नरेंद्र मोदी जी ने आज से नहीं, कई सालों से नरेंद्र मोदी जी ये कहते आ रहे हैं कि आतंकवाद का कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद ये पूरी दुनिया के लिए नासूर है, ये पूरी दुनिया के वो सड़ा के रख देगा और आतंकवाद का विरोध होना ही चाहिए। और जिस यहाँ तरह पर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर आपसे, संजय ठाकुर साहब, जरा ध्यान दीजिए जी, बहुत जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज जी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यूएन जो है उसकी रिपोर्ट को, आई मीन इट इज आउटसोर्स्ड, इट इज फ्रॉम ए स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन। हिंदुस्तान की पोजीशन जो है वो 111 है, 111th। सर आप जानना चाहेंगे पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? पता नहीं। यही चीज नहीं, सर तो सुन तो लीजिए। करती है। अरे सर सुन तो लीजिए, आप दोस्त हैं हमारे।
Pakistan is at 102, above India. Bangladesh is at 81, Nepal is at 69, and Sri Lanka is at 60. We are at 111. Afghanistan is at 109. वो भी आगे है। तो ये सर क्या है, ये कौन सा सर्वे है? अरे जहां पे पाकिस्तान में आटे के ऊपर दंगे हो जाते हैं, लोगों को खाने को नहीं है, लोग भीख मांग रहे हैं इधर से उधर। सऊदी अरेबिया में उमरा के जाने के बहाने से 15 भिखारी प्लेन में शामिल हो गए। उनको सऊदी अरेबिया वालों ने उठा करके वापस भेजा कि भिखारी कैसे आ गए यहां पे। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है मुझे मालूम नहीं है। Personally, I think we should ignore it completely. And I think, I'm so sorry, we should have asked that question to the Congress spokesperson. The shame on the Congress for even taking it seriously. आप खुद सोच के बताइए, पाकिस्तान is ranked above India in hunger. मतलब पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके पास खूब खाने पीने को है साहब, हिंदुस्तान के पास नहीं है। संजय ठाकुर साहब, by the way, the External Affairs Ministry, our own Women and Child Development Welfare Industry and the Agriculture Ministry, they have all protested and they have said we don't believe this data. ये डेटा जो है ये वाहियात डेटा है। एंड बाय द वे ये डेटा सिर्फ फोन पे कलेक्ट होता है, ये भी आपको बता दूं सर। संजय ठाकुर साहब, नवाज साहब, यही टूल किट है जी, पूरी दुनिया में हर जगह है। और कम से कम आज की डेट में तो आप ये मान के चलें कि हिंदुस्तान जिस तरह से चमकता हुआ सितारा है, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो दोस्त दिखाई देते हैं लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप जिसके जस्ट पीछे खड़े हैं उनको भी ये चिंता सता रही है कि इस रेस में न जाने ये भारत देश कब हमसे आगे चले जाए। और हर जगह पे इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनको टूल किट की तरह इस्तेमाल किया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां एक आटे के लिए लोग मारामारी कर ले रहे हैं, दंगे हो जा रहे हैं, जहां की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम यहाँ भूखों मर रहे हैं और हमको नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए, वो हमसे ऊपर है। तो यूएन, अभी देखिए इजराइल वाले मामले में भी यूएन को इजराइल ने जो जवाब दिया है, उन्होंने यही कहा है कि आप सबसे पहले ये विचार करिए कि जो इनोसेंट होस्टेज बैठाए गए हैं उनको कैसे छुड़ाओगे। आप ये भाषण देना बंद करो कि हर तरह के लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं इन सारी चीजों के पीछे। कहीं ना कहीं चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहीं ना कहीं जो लोग दूसरे हिस्सों में लड़ाई लड़ रहे हैं उनको दूसरे लोगों को दुनिया के दूसरे कोने में इंगेज करना है, भारत की स्थिति को अपवर्ड करना है। बहुत सारी विदेशी ताकतें आपके खिलाफ लगी हुई हैं, उन्हीं ताकतों से तो हम लड़ भी लेते, लेकिन हमारे देश के अपने अंदर का विपक्ष, जब हमारे देश का प्रमुख विपक्ष कांग्रेस, जब वो यही नहीं बनाता है कि उसकी इस बात के पैसे लेता है चाइना से जाके, क्या एग्रीमेंट है उसके और चाइना के बीच में, भारत को कितना बदनाम करना है, भारत में कितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज कराना है, कितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करना है। कांग्रेस के नेता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देने वाले नारे देने वाले लोगों के साथ जब जो नेतृत्व तो खड़ा हो जाता है, तो इन लोगों के टूल किट तो हर जगह है ना। 67 साल एक छत्र राज किया है बजाज साहब, पूरी दुनिया में इनका टूल किट है, पूरी दुनिया में इनके लोग हैं और इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है। अब ये फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, लूट मार से ये इनका पेट भरा नहीं अभी, और अभी आजकल इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो अपना कुछ न कुछ प्रयास तो करेंगे ही नहीं। आप खुद सोचिए सर, 102 नंबर पर पाकिस्तान है और उसके ऊपर 89 नंबर पर श्रीलंका है। श्रीलंका जिसके पास पानी नहीं था, पेट्रोलियम नहीं था, जिसके पास कुछ खाने को नहीं था, भारत ने भेजा है। भारत ने भेजा, एग्जैक्टली। अरे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे से ऊपर है। मतलब ये पहले भी, पिछले साल भी जब ये फिगर्स आए थे, भारत सरकार ने बहुत ही इंटेंस तरीके से प्रोटेस्ट किया था। अब यही चीज दोबारा दोहराई जा रही है और उसको हमारा विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका बहुत सीरियस एक व्यू लेना चाहिए सर। वी शुड स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, बाय द वे रेगुलर कंट्रीब्यूटर भारत है। आईएमएफ का जो 3.5 के 4% का जो कॉर्पस है वो भारत देता है। हम लोगों को अपने पैसे वापस लेने चाहिए। मैं सीधी बात बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल साहूकार की तरह बात करो सर। ये करना बंद कीजिए, भारत की छवि बिगाड़ना बंद कीजिए, वरना
आपको हमारे पैसे नहीं मिलेंगे साहब, हमारे ही पैसे लेकर के आप हमें ही बेइज्जत कर रहे हैं। सच तो बोलिए ठाकुर साहब, बताएं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है बजाज साहब, मैं यही कह रहा हूं कि यही इसी तरह के लोग और जी। इसी तरह के कैंपेन में कांग्रेस, देखिए भारत देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें से एक दो पार्टियां ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इन चीजों को अफेक्ट करती हैं, जिसमें से एक कांग्रेस है, दूसरा आम आदमी पार्टी है। इन्हीं लोगों के बाहरी भारत के दुश्मनों से रिश्ते हैं। ये लोग इस तरह की चीजों को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये एजेंडा फिक्स करके देते हैं और वहां पे बैठे बैठे ये करने वाले लोग हैं। और जिसको कितनी जोर से आप बताइए, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ये सवाल नहीं पूछना चाहती है कि भाई आप पाकिस्तान से नीचे हम कैसे, बांग्लादेश से नीचे, श्रीलंका से नीचे और अफगानिस्तान से नीचे भारत कैसे हो सकता है। इनको तो एक मौका चाहिए नरेंद्र मोदी जी को और भारत देश की सरकार को बदनाम करने के लिए, और ये पूरी तरह से विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं। कह तो रहा हूं कि इतने सालों तक राज करने के बाद ये वो कुछ नहीं कर पाए, और हम आने के बाद पिछले 4 सालों से जो त्रासदी से झेल रहे हैं, हम अपने देश के इतने लोगों को अगर भारत सरकार ही सक्षम है खाना खिलाने में, तो हंगर इंडेक्स पे भारत कहां से आ गया। ठाकुर साहब, मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिनाउंस इस अटैक ऑन इजराइल, हामास टेरर को डिनाउंस कर दिया, राइट टू रिटेलिएट को सपोर्ट कर दिया, बट बीजेपी वेंट अहेड। बीजेपी सेड दैट 2004 से लेके 2014 तक इंडिया वाज फेसिंग व्हाट इजराइल इज फेसिंग राइट नाउ। कंटिन्यूसली यहां पर ट्रेन ब्लास्ट हो रहा था, गेटवे ब्लास्ट हो रहा था, अलग अलग प्रकार से ब्लास्ट हो रहा था, एंड देयर वाज नो रिटेलिएशन। देयर वाज नो रिटेलिएशन। द गवर्नमेंट ऑफ द डे वाज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड। 2008 का उदाहरण बीजेपी आगे जाके देख रहा कि दिल्ली ब्लास्ट हुआ 2008 में, उसके बाद बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के आंसू बहाए। किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। बट जो शहीद हो गए पुलिस ऑफिसर, उनके लिए किसी ने आंसू नहीं बहाया। तो बार बार बीजेपी ये दोहरा रहा है कि कांग्रेस इज सॉफ्ट ऑन टेरर। कह रहा है कि पठानकोट के बाद बालाकोट हो गया, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किए। वी शोड हाउ वी कैन रिटेलिएट। Is Congress soft on terror, Thakur Sahab? Is the BJP taking this particular advantage to highlight that Congress is soft on terror? Thakur Sahab. Sir, I go one step ahead and I allegate that Congress is not only soft on terror and terrorists, Congress is hand in glove with terror organization and terrorists. We have ample of examples. जाकिर नाइक को जिस तरह से कांग्रेस के नेता गले लगा के घूमते रहे और उसको सामने जाके सर, उनको जाकिर नाइक जी को शांति दूत कहा गया। रहे, इससे ज्यादा क्या सबूत और चाहिए क्या कि इन लोगों के हाथ इन टेररिस्ट एक्टिविटीज में लिप्त हैं? अरे संजय ठाकुर साहब, दिग्विजय सिंह साहब ने डॉक्टर जाकिर नाइक को एम्बेसडर ऑफ पीस कहा। एम्बेसडर ऑफ पीस। सर, इससे बड़ा कौन सा सबूत चाहिए कि कांग्रेस इज हैंड इन ग्लव विद टेररिस्ट? So you are saying that itself is a proof that Congress is in hand in glove with terrorists and terrorist organizations. तो national security और nationalism में you say you score more than the Congress, Thakur Sahab. In every department we score more than the Congress. Congress is never nearer to us, and Congress is not at all a matter to us. We are nationalists, and we will see to it that nobody is able to harm our interest, national interest, and we will treat them as they should be treated. लेकिन ये तो बता दें सर, देयर इज अ लॉ इन द कंट्री। हिंदुस्तान में एक कानून है। कानून ये है कि आतंकवादी संगठन के प्रति कोई भी अगर समर्थन दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज तक हमारे दिग्विजय सिंह साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये तो बता दें। नहीं, देखिए ऐसा है बजाज साहब कि हम किसी को विक्टिमाइज, हम दिग्विजय सिंह के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय हमने सीधे जाकिर नाइक पे ही कार्रवाई कर दी। आज भगोड़े की तरह घूम रहे हो। हम किसी भी प्रॉब्लम की रूट को एड्रेस करते हैं जी। और कांग्रेस कुछ भी कर ले, हम इन लोग, और समय आने पे सबका इलाज हो जाएगा बजाज साहब। अभी हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो इसके जो रूट कॉजेस थे उनको ट्रीटमेंट करने का समय था, और वो हमने किया है, और आने वाले समय में इन सिरफिरों का भी इलाज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आई एम रियली पॉइंटिंग दिस आउट टू यू। आई होप इट रियली हैपेंस। राइटफुली स्पीकिंग, आई शुड बी आस्किंग द spokesperson for the
उत्तर प्रदेश बीजेपी, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आप भी खुद भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं ठाकुर साहब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों ने, बच्चों ने हामस के समर्थन में एक जुलूस निकाला था जब हामस का अटैक हुआ सैटरडे को इजराइल के ऊपर। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। अब उसमें आगे क्या हुआ, आई होप इट विल बी टेकन वेरी सीरियसली एंड आई होप it will be taken to its logical conclusion. Mr. Sanjay Thakur. No, Uttar Pradesh government has already warned everyone who are involved in such kind of activities. माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि अब एक्शन होगा जो भी इस तरह की हरकतें करेगा, और जो एफआईआर हुई है उसमें भी एक्शन होगा। बाबा का बुलडोजर तैयार है बजाज साहब जी, और ऐसा इलाज होगा कि दोबारा ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इलाज तो करना पड़ेगा। इजराइल में बुलडोजर देखे थे हम लोग, तो वही बाबा जी भी वही इजराइल वाला बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं इजराइल में भी वही बुलडोजर चल रहा था कि जहां आतंकवादी छुपे हैं वहां पर बुलडोजर चलाए हैं। बाबा भी वही कर रहे हैं ठाकुर साहब। बाबा तो पहले से ही कर रहे हैं सर। आप ऐसा समझिए कि इजराइल ने बाबा के कॉन्सेप्ट को ले लिया है। बाबा तो जिस दिन से आए उसी दिन से इन लोगों के मंसूबे पे बुलडोजर चला रहे हैं और आने वाले समय में चलाते रहेंगे। सर प्रेडिक्शन टाइम, भविष्यवाणी, अगले 5 इलेक्शन होने वाले हैं सर नवंबर में। 3 दिसंबर को कौन से स्टेट में जीत रहे हैं सर, आप ये बताएं। सर 4 स्टेट क्लियर कट जीत रहे हैं, एक स्टेट में थोड़ी सी फाइट है, इलेक्शन आते आते वो भी जीत लेंगे। कौन से स्टेट में फाइट है सर? तो वो थोड़ा सा है, वो वहाँ के रीजनल इश्यूज हैं। किसमें? ये आपका जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में थोड़े बहुत रीजनल इश्यूज हैं, तो आप वो तेलंगाना issues भी हैं, जीत रहे हैं। उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, वहां भी बहुत अच्छे से जीतेंगे हम। तेलंगाना भी जीत रहे हैं सर। तेलंगाना में हम और हमारे एलाइज जीतेंगे। तेलंगाना में हमारी बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, विरोधी पक्ष वहां आने नहीं पाएगा। क्या बात है साहब। संजय ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर आपको अभिनंदन, आपको शुभकामनाएं। Congratulations, India has just defeated Pakistan in Ahmedabad. So India has won all 3 matches. So we are at 6 points right now. The campaign for the World Cup is going on very well. I hope we win the World Cup. That will be wonderful. Thank you so much, sir. Thank you, sir. नमस्कार सर। वंदे मातरम, भारत माता की वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you very much. Thank you so much. All right, I tell you what, Pradeep ji, as far as the global hunger index is concerned, it's a joke. You always said that. It's a These bloody kind of joke. I surveys mean, what is means this? Nothing. India is a power on its own, superpower on its own. We can Pradeep see ji. how the way the world is treating and respecting us. That just Pradeep ji, Sri Lanka had run out of fuel. They had run out of electricity. They had run out of food. there was a kind of revolution out there in Sri Lanka where the people entered all the 5-star hotels and jumping, poor people were jumping in the swimming pool and the whole world saw it. India sent food, India sent fuel, India sent everything, and we are supposed to be behind Sri Lanka in the global hunger index. Pakistan, there are food riots. आटे के ऊपर riots हैं साहब, आटे के ऊपर, आटा, फ्लावर, व्हीट फ्लावर, उसके ऊपर दंगे हो रहे हैं पाकिस्तान में। खाने को नहीं है लोगों के पास, और आप कहते हैं पाकिस्तान इज प्लेस्ड अहेड ऑफ इंडिया। इंडिया की पोजीशन 111th है, पाकिस्तान की 102 है, श्रीलंका की 89th है साहब। Isn't that wonderful? What kind of a global hunger index is this? As usual, it has been outsourced. It's been outsourced to a Swedish company, and that Swedish company has, by the way, I have no hesitation in saying this, has a lot of Pakistani origin researchers. So, you know what that means. Rightfully speaking, we should accept that global hunger index. We should accept it, and we should go back to the IMF and say, hey, listen, Pakistan is above India in terms of the global hunger index, so we should withdraw the credit that we have advanced to Pakistan. $8 billion जो अभी अभी आपने दिया ना, उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि इसमें तो हमारा पैसा भी है साहब. Let's be very clear. Why do you need to give a loan to a country which is above India in the global hunger index? They don't need our money. They're already very well fed. They're doing quite well. It's a prosperous country, साहब. सीधी बात है. We should do that. I think this is a joke. I think this is so stupid, utterly stupid. I hope this time the government of India takes it very seriously. Right, and at the moment with us from the NCP, we have Dr. Surena Malhotra. Dr. Malhotra, namaskar. Yes, namaskar. How are you, ma'am? Always a pleasure having you on the show. Really wonderful. Namaskar. Jai Mata Di. जय माता दी, Navratri जय is माता near. जी. कल से नवरात्रि शुरू है जी.
कल से नवरात्रि शुरू हुए, जबरदस्त. We keep on meeting before all the festivals. Yes, wonderful, absolutely wonderful. It's the happiest time of the year, the most magical time of the year. सब कुछ ठीक होता है उस वक्त. असल में सारे पाप जो हैं वो नष्ट होते हैं और सच्चाई की जीत होती है असल में. राइट अप टू दशहरा. तो जैसा सुप्रिया सुले जी ने कल कहा कि ये लड़ाई जो है ये सच्चाई की है. शरद पवार साहब की जो लड़ाई है वो सच्चाई की है और ये सच्चाई की लड़ाई में शरद पवार साहब की जीत होगी. आपको क्या लगता है सुरैना? Definitely, we are positive and we are optimistic. And as I've said, there is no other thought. NCP is Sharad Pawar. NCP soul is Sharad Pawar, and the clock is Sharad Pawar. The ticking of the clock is Sharad Pawar. You know, so the battery is Sharad Pawar. So it's all that force is Sharad Pawar जी. हमारे आदरणीय शरद पवार जी. So उनके बिना NCP तो हो ही नहीं सकती है. That is not NCP. So we are all optimistic and. जी दुरुस्त बात है. But what I'm sad about is the fact that even Mr. Chhagan Bhujbal, who's otherwise, who joined Sharad Pawar ji, and Sharad Pawar ji supported him so much and made him into what he is. He made him deputy chief minister, he was home minister and so on. And even he has attacked Sharad Pawar sahab, which is sad. I feel really and truly sad because I know Chhagan Bhujbal sahab. Usually he is not like that. Dr. Surendra Malhotra. That is what. It is a very, very sad situation. Last time, as I said, that Pawar Sahab was there waiting in the election commission, waiting and to look after his baby from 4 o'clock to 6 o'clock. And then what happens? These people initially when they went, they used the Sharad Pawar Sahab's photograph because they knew that they have to hold his hand to come forward, to go ahead. But now it is like they are in BJP, they are in a party where probably whatever things which they have learned and all is going against them. So they have to talk something over there just to justify that, why they are there. It is just their way of justifying in a very, very wrong way. This should not be done. This is low politics. Absolutely. Dr. Malhotra, Chhagan Bhujbal went on pointing out issues after issues, date-wise. He said, yes, Pawar Sahab did tell us to meet at 2017. Yes, Pawar Sahab did say 2019, go and meet them. He says, yes, 2022 also. So he's confirming this kinds of incident. He says the early morning swearing in done by Ajit Pawar ji was because Pawar Sahab himself had told Ajit Pawar to negotiate the terms and conditions, negotiate the ministerial berths, and then suddenly Pawar Sahab took a U-turn. Now, you have got senior leaders like Chhagan Bhujbal, casting aspirations on the conduct of Sharad Pawar Sahab. So how do you see this? How does the NCP see this? See, the thing is that if they are saying something, they're giving us the earlier date, then what happened at that time? How come then these people were with Pawar Sahab? If they knew, if they were so unhappy, if they said that Pawar Sahab hukum shahi chalate hai, all these things, whatever they are allegations which they are doing, just to justify their stand, everybody knows. People also know that this is just a way of putting allegations. They don't have anything great to talk about. Actually, they cannot justify their stand, so they have to come forward and say something. So at that time, if they were so unhappy, if they knew so many things, then how come they were with Pawar Sahab? So many years they have, they have got the priorities. They got so many things. In fact, all of them who went, they were given such good positions by Pawar Sahib. They were given so much of opportunity because of Pawar Sahib. They could excel in politics. They could learn so much. And now they are. This is an absolutely ungrateful bunch of politicians. Yes, absolutely. Further, as they say that Supriya Sule ji was very, very, she said that these people have gone, now they removed Sharad Pawar Sahab's photograph and they kept YB Chavanji's photograph. YB Chavanji. And Supriya Sule said YB Chavanji was totally against the BJP. YB Chavan called the RSS a fascist organization. She said YB Chavan would never integrate himself or his association with ideology of Savarkar, with Godse's ideology or the RSS ideology.
Supriya Sule further says that by putting YB Chauhan's photograph and showing that they are the ideal, YB Chauhan is the ideal, is totally far away from the ideals. It's totally opposite. That is what Supriya Sule, she's shocked. She said, how can you take YB Chauhan? Exactly. Having Pawar Sahib photograph was for the first thing which did not succeed. So this is the second thing which they are trying to do. And you are absolutely correct. They are with BJP now. They are with BJP and they are following YB Chauhan, who was, absolutely, his thought process was absolutely away from what BJP is thinking. So this is absolutely, it's like, a person wants to swim, but he cannot swim, so he tries to catch hold of this, catch hold of that, just to float. So, Dr. Surena Malhotra, आपको क्या लगता है? मैडम, आपको क्या लगता है? I am waiting for the day because I still haven't seen it. मैं तो वेट कर रहा हूँ कि अजीत दादा पवार खड़े होके बोलेंगे जय श्री राम जोर से. आपको लगता है ऐसा होगा क्या? You never know. We never know. See, things are happening. It is like a movie, story. What the things we never expected have started happening from Shiv Sena onwards. So you never know what will happen. अजीत दादा पवार हो गए हमारे, और तो और छोड़िए हमारे दिलीप वलसे पाटिल साहब वो शरद पवार सेक्रेटरी, अरे सेक्रेटरी हुआ करते थे उनको उठा करके उनको मंत्री बना दिया, उनको होम मिनिस्टर बना दिया. आज वही दिलीप वलसे पाटिल साहब शरद पवार साहब के खिलाफ बोल रहे हैं. मतलब I can't, my brain does not accept it. ये क्या हो रहा है? Yeah, we can understand कि मजबूरी थी, there was ED or whatever, for those reasons they have gone on the other side, but at least political dignity should be maintained. What is fair, and that should be acknowledged. Fine, they had reasons to go, okay, go, then at least what they are saying that विकास के काम करेंगे, so they should focus on the विकास के काम ना. Why get into these politics of criticizing your own father? That's not done. That doesn't. अरे वो तो बोल रहे हैं कि 83 साल का हो गया है, कब रिटायर होगा, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी मराठी में, and it sounds so vulgar, it's so terrible. सुरेना मल्होत्रा जी, it's very bad. I'm truly saying, as Supriya Sule ji has rightly said, that वो दूसरों के एज का लिहाज करते हैं, इसके लिए वो कुछ बोल नहीं रही है सुप्रिया ताई. Otherwise, ये ऐसी लैंग्वेज सुन के तो कोई भी, anybody would get angry, but that is what the NCP has taught us. That NCP has taught us to be dignified. वैचारिक लड़ाई करो. That is what NCP has always thought about, and we abide by that. But it's very pathetic. It's a condition is very pathetic. It's not done. Dr. Malhotra, Supriya Sule ji was hurt. Supriya Sule ji was hurt when Sharad Pawar ji was there, present the Election Commission office. Himself, he had gone there, and the lawyer of the NCP, Ajit Pawar Gut, told that there is no democracy in the party. Sharad Pawar ji was running the party as his family fiefdom. Sharad Pawar ji was a dictator. Sharad Pawar ji imposed his actions on other people. Sharad Pawar ji was not a democrat. Supriya Sule ji was hurt. In fact, she went to such an extent, she said, I will take care of that lawyer. That lawyer, one day I will take care of him. That was an outburst. Today, NCP released one letter that Sharad Pawar Sahib had written when Chhagan Bhujbal was in the jail. Chhagan Bhujbal ji jail mein tha, and Sharad Pawar ji wrote a letter to the then Chief Minister Fadnavis that please give him good medical treatment. Please help Mr. Bhujbal. He is not well. His health doesn't permit him. I request you. Sharad Pawar Sahib in his letterhead has written and requested the then CM Fadnavis that please take care of his health. Please give him all the required medical facilities. Mr. Bhujbal was a great big leader, tall leader of the NCP, but whatever the reason, he has to be medically attended. That shows how much he cared for every leader of the NCP. That is what the NCP and Supriya Sule ji says. He can never be a dictator. Exactly. He can never be a dictator. Pawar Sahib is not a dictator. In fact, Pawar Sahib has given chance to all the people. Pawar Sahib had a great ability to see what is good in a person, and he has given the chance. In fact, now all these people have gone fine, but there are the youngsters. So he is giving chance to the youngsters. Giving chance for the Delhi office to be handled by a youngster, so in the Pradesh office, in the Pradesh also they are using the youngster, they are using young talent, and Pawar Sahib always thinks about everybody. He had great faith in Praful Patel ji.
he had great faith in Ajit Dada. Everybody, he's always like, encouraging everybody. As you very correctly said, he always thought well about everybody. Now even Nawab Malik ji, when he was, Nawab Malik ji unfortunately was inside, so much support Pawar Sahab had given, Supriya Tai had given when he was released. It was Supriya Tai was the first one who was there in the hospital to receive him. And even Chhagan Bhujbal time also, the Pawar Sahab's letter, we know about it. And this, he's always stood by all of them. They were taken, Chhagan Bhujbal's wife was also, taken care of. They always inquired about her well-being. And Nawab Malik is going to betray you again. Just like Bhujbal has done. Looks like it. Because That is what Jayant Patil said. because That is what Jayant Patil said. Because most of his most of his colleagues have joined Ajit Dada group. We really salute Anil Deshmukh ji. Oh, he's a great man. Anil Deshmukh, we stood tall with all these complications, with all these problems. He stood tall and he stuck with Pawar Sahib, and an excellent Guru Mantri that he was. Yes. Very, very nice. So Like there are loyal people. Jayendra Awad साहब, like Jayant Patil जी, सब लोग आपके साथ हैं, ऐसी क्या बात है? Yes. And, No, Anil Deshmukh inside. I mean, he went inside for so many months, and then he was also, his place was raided so often. His relatives were troubled. So even despite all that, he's still with Pawar Sahib. So there are Absolutely. people who are, even Jayant Patil, he's like rock solid with Pawar Sahib. And But he's a what I'm major- surprised about it is I keep saying this again and again and again. I don't think the workers of the NCP are going to stand for it. जितने भी आपके वर्कर हैं एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, हम लोग जिनसे बात करते हैं, जो पुराने लॉयलिस्ट रहे हैं शरद पवार साहब के, वो कोई खुश नहीं है साहब. ये दे विल नॉट फॉरगिव. वो इनको माफ करने वाले नहीं हैं. They should be very happy. At the moment they are in government, they have security. They will not forgive these people. Come the elections, I think they'll find out. I think the election is the best time where all the things would be made very clear. We know the support of the people. The absolute people are also have got. In fact, the sympathy with Pawar Sahib has increased because people have also felt very betrayed. Anybody, any outsider, anybody. जी, बिल्कुल. Foreigners, we ask them कि Pawar Sahib, Pawar and Nationalist Congress Party is Pawar Sahib. There cannot be any other party. लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि जिस बीजेपी के खिलाफ आपने सारी उम्र, पहले जनसंघ के खिलाफ और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारी उम्र आपने गैर सांप्रदायिक संगठन में रह करके ये कहा कि भाई हम लोग सेक्युलर हैं, सेक्युलरिज्म का आपने सेक्युलरिज्म की तूती आपने बजाई, और आज आप कम्युनल हो गए, मतलब हिंदुत्ववादी हो गए. आपको भी मिलते होंगे लोग, मतलब इनके आसपास के लोग जो होंगे आपसे भी बात करते होंगे, तो इस विषय में बात नहीं होती मैम क्या कि ये आप लोग क्या मतलब क्या ये सब राम सेवक हो गए, वीएचपी के लोग हो गए, या विश्व हिंदू परिषद के लोग हो गए, बजरंग दल के हो गए? Exactly. I mean, how can you change your whole thinking? I mean, just for being protected or just for being, come into power, how can you change the basic thing? Like, I mean, I'm a doctor, I'm a secular person, I'm going to be secular. My thought process is going to be that. How can you say, oh, Hindutva, how can you be the closed Hindutva? Okay, we believe in everybody, we believe in the universal. जी विरोध बात. Yeah. Dr. Malhotra, Prime Minister Modi, he denounced the Hamas terror attack on Israel. He denounced it. He said, and he supported Israel's right to retaliate against terrorism. Now, just yesterday, Mallikarjun Kharge Sahab and the India Alliance, they wrote a letter to Meta, the owner. They said the social media is being used to create disharmony, communal disharmony, hatred between religious communities, and if it is not controlled right now, there will be a great divide in the country. India, there will be a lot of communal disharmony, and Meta has got a right to control this kind of disharmony, hatred that is being spread in the various social media, including Facebook, Instagram, and various where Meta is concerned. Now, is there a kind of atmosphere going on in the country that India Alliance supports Hamas? Is there something like that? And that's why the India Alliance has written to Meta to control this kind of misinformation and things that will cause disharmony. Dr. Malhotra. The voice was not very clear. I'm sorry, there is some breaking of the voice.
I couldn't hear the last question. Sorry, can you repeat? No, please? the India Alliance has Yeah, okay. written a letter to Meta, the owner Yes. of Facebook, Instagram, Yes. that there are continuous spreading of hatred in all social medias, including Facebook and Instagram, various other things. Yes. You need to control it because Yes. it is giving an atmosphere that the India Alliance are supporting Hamas terror attacks. Correct. Yes, and there's a divide that Modi ji is supporting Israel. So this disharmony has to be controlled, which is going on. Hatred is going on. It will create a big tension within the whole country. Very, very true, because that is what that sort of videos, even I have seen, that sort of messages have come, and in fact they have come from some of our doctors who it has come to me. We have read. So in fact we were also surprised initially that how come such a strong messages are coming. But then that is always the tactic which BJP uses. BJP sort of condemns the other party, condemns opposition. There are always the lies. Many times they have used that Rahul Gandhi favors Pakistan and such. In fact, videos have been seen that Rahul Gandhi is saying, "I love Pakistan." How can he is not going to go and say that? I mean, normally people who think, they should think about it. How these are all artificial intelligence is used to change the voice and this and that. So this is definitely, this should be curtailed. This is not fair politics. See, politics has to be fair. You have to, talk on the proper. This is all BJP is always trying. Ma'am, my respect for you goes up. You still expect fairness. No, we expect. You are amazing. That means you are a little girl at heart. Very frankly speaking, Yeah, it looks like we it. we are expecting like somebody like Gadkari may come sometimes. Advani ji was also good. So sometimes in BJP there would be a change sometimes, and there would be some fair politics. But these are all divergent tactics. This is लेकिन all अभी तो ऐसा है साहब के हाँ. भारतीय जनता पार्टी में अजीत दादा पवार गुट में और एक नाथ शिंदे गुट में तकरीबन एवरीबडी हैज कम टू द कंक्लूजन, हर एक कोई इस निर्णय पर आ गया है कि भाई एनसीपी नाम और सिंबल दोनों अजीत दादा पवार साहब को जा रहा है, लगा सा है ना, बताएं आप। We are hopeful कि नहीं जाएगा. We are hopeful that truth will prevail, and we are hopeful. So let us see. Let us एंड watch. एनीवे इट्स अ टाइम ऑफ नवरात्रि, महालय खत्म हो जाएगी अभी 11:30 बजे रात को, उसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी और नवरात्रि में तो इंसाफ होता है साहब, इंसाफ होता है, इंसाफ होता ही है, होता ही है, क्योंकि जी। महिलाएं जो दुर्गा माता है, महिलाएं फॉरवर्ड आती है, महिलाएं लड़ाई करती है, महिलाएं उनके दूसरी महिलाओं की रक्षा के लिए आगे आती है. That is what NCP teaches us. That is what पवार साहब teaches us. महिलाओं को आगे लाओ. तो हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों का नाश होगा. And you said Sharad Pawar ji teaches you, but BJP is taking the credit. BJP says Nari Shakti Vandan Adhiniyam, we bought it. We thought of women empowerment. No, 27 years of Congress and its allies never thought of it. So, Beti Bachao, Beti Padhao. That is BJP slogan. Lek Ladki slogan in Maharashtra. They said these slogans from 2014 that Narendra Modi government has been imposing on the people has led to a change in the sex ratio, where as on today, the sex ratio is for every 1000 male, there's 1020 females. And Prime Minister Modi and the BJP is taking credit. They said our facilities, our benefits that we provided changed the mindset of the people. Female infanticide has reduced. And today, after 2014, since we took over, we have changed the entire ratio, and women, that's the credit goes to Prime Minister Modi. That's what the BJP says. How do you see, Dr. Malhotra? BJP always has been taking credit for the work which is done by the Congress party. And in fact, Mahila Arakshan, that is the highest respect we give it to Pawar Sahib, because he is the one who started Mahila Arakshan in Maharashtra. And Congress also followed that through. And so many years they were trying to bring the Mahila Arakshan. It was in 2008 that because of BJP that could not get passed, and now they have made a big hue and cry about it, as they have spent so much of money in advertisement and told people that okay, this is what they have brought. But as we had discussed before, and all the time we are discussing, how it is not going to be applicable for this election 2024. It will be, the census will be conducted in 2026, and then afterwards
there is delimitation, and then later on it will come into force in maybe 2029, 32. You know, so it is just दिखावा बोलते हैं ना, जो बीजेपी बहुत अच्छी तरह से करते जी। हैं। जनता का इतना पैसा, जनता का इतना जो टैक्स अमाउंट है अराउंड 4,900 करोड़, उतना पैसा उन्होंने एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते हैं। तो ये सब उनका तो नॉर्मल है। दे ऑलवेज ट्राई टू टेक द क्रेडिट फॉर एवरीथिंग, फॉर अदर पीपल्स वर्क। Right. Dr. Surendra Mazda, thank you very much for joining us. Always a pleasure talking to you, ma'am. Great pleasure talking to you. एक बार फिर आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। Thank you. Well, I hope Mr. Sharad Pawar knows what's coming, and I hope he's equipped for it. That's all that one can hope for. He's been a fighter all his life. I mean, the youngest, probably at his time, he was the youngest chief minister. Yes, he was. He was the youngest And- minister before Mr. Devendra Fadnavis became chief And minister. with no dynastic politics. His But father was nobody. I he mean, is his the mother. but he's the only man Yes, he made it all on his own. having been chief minister 3 times. Bilkul. He has never completed a term. That too. No, but So- at his age, at the age without any family background to be a chief minister and then stick on there and control Maharashtra politics for nearly 3 decades or 4 decades, now that calls for something. But what I'm saying is, now the battle is he's got his back. Now the real battle begins real battle now. where It is most difficult battle difficult now. times. Right, and just before we go, आप सब लोगों को एक बार फिर ये खबर देते हुए कि हिंदुस्तान ने, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, defeated by 7 wickets. Pakistan couldn't even play all the 50 overs, by the way. In Ahmedabad. And India also never played the 50 overs. We didn't It's need good. to. We didn't need to. We just. And when it was going, I thought it will be over in 20 overs. No, the it way wasn't. things were. We lost 3 wickets. Shubman Gill, who has not recovered completely, Virat Kohli playing a silly shot, and Rohit Sharma, after having done his work, after Shreyas Iyer and KL Rahul brought us home. And that was brilliant. That was absolutely fantastic. And a great bowling performance and fielding performance from the Indian team. So, congratulations to all of you. India has now won 3 matches, all 3 matches, like New Zealand. There are 2 teams that have won 3 matches, namely India and New Zealand. And I think South Africa haven't played only 2 matches. They have another match coming up, so we'll know. So in effect, there are only 3 unbeaten teams in the World Cup at the moment. It'll be very interesting to watch. But now that this game is out of the way, now everybody can get on with the serious business of cricket. That'll be fine. That'll be nice. और चलते चलते आपको ये बताते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिस्पॉन्स भेजें. टॉकिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, आई थिंक वी डू हैव अ कपल ऑफ कमेंट्स दैट वी हैव टेकन टुडे. 2 या 3 कमेंट हैं, शायद 2 कमेंट हैं या 3 कमेंट हैं. जितने भी हैं ज़रा दिखाएं प्लीज़. लेट्स टेक अ लुक. मुझे अम्मा के साथ Dharmendra shares his latest workout video. He will soon enact ultimate role. Cine fellows are greedy. Dodi Shankara, Pooja Hegde to star opposite Shahid Kapoor in upcoming action thriller. Nice, says Ratri Khan, 4397. Do we have anything else? Can we move on, please? Modi stands by Israel. Oh God. All right. Nice language. That's a very, very nice comment. Gentlemanly language. That's a very, very nice comment. Thank you so Savi much Shah. for sending it. All the best to you. God bless you all. Well, that's just about it. Do keep sending in your comments. We'll try and read them out. And of course, some which are too offensive, we'll show them. We won't read them. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. पितृपक्ष तकरीबन खत्म होने वाला है. नवरात्रि शुरू होने वाली है. अगले 9 दिन नवरात्रि और उसके बाद 10वें दिन दशमी. The festival season is really on. Absolutely fantastic. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.